and especially you can see Mahanadi in our river as well. We have some problems with the climate change. All literature says the wet season may get wetter while dry season may get drier. That is a big question before us. So how best we can tackle this situation? So that when we think about the change in rainfall pattern across India, when you look, you see the heavy rainfall events are actually going up. Extreme rainfall events, we say, it is going up. Same time, the moderate rainfall or even lower rainfall actually coming, drizzling and all are coming down. It's across India, whether if you look towards Dehradun or if you look towards in last 2-3 weeks back, we have a major landslide in Wayanad district of Kerala. And 2 days, you cannot believe 525 millimeters of rainfall downpour happened in that particular area, and it triggered the landslide. So that this type of issues may happen anywhere in India in future years to come because of climate change. And when we think about water demand, you see, this is a big problem because altogether we have only 1123 billion cubic meter in India, and our demand now is around 900 billion cubic meter. But after 1 or 2 decades, when our demand reaches 1400 billion cubic meter, what we will do? From where will the extra water will come? So you can see the comparison between 3 countries, Israel, India and China. You see that Israel is producing 10 times of more food grains, fruits and vegetables using the same amount of water we use. So the opportunity before us is increase the water use efficiency. Similarly, the groundwater extraction is also so huge for here, so that naturally you have to lift more water for producing more food, fodder and fuel. Naturally, it will increase greenhouse gas emissions also. So that there is also one opportunity we have, that is to increase the irrigation efficiency so that greenhouse gases can be reduced. And when we think about climate change, we have 2 opportunities, two options. We all know one is adaptation, another is mitigation. We will focus more on now adaptation, resilience, because climate change is a reality. How best we can change our lifestyle, how we can change our cropping pattern, how we can change our breeds, how we can change our varieties, how we can change our pollutants, the way we manage our pollutants, whether it is solid or liquid. So these all are the major opportunities we have. Especially when we think about water, 4 perspectives, we know quality and quantity, deficit and excess, demand, supply, then of course blue, green, gray, that I will not discuss further. And water resources development and management, whether we look at this particular aspect, in any part of the country, 6 areas we have to focus. They are supply sector, demand sector, water governance, capacity building, disaster management, and climate resilience. And in Kerala, we have recently started a very big initiative. All the Grama Panchayat, we are making the water budget. Kitna pani milta hai aur kitna kharcha hai, how much is available, how much we are utilizing. So that every sector we are finding out. And receipt of water in terms of rainfall, in terms of surface water, in terms of groundwater, import and export, everything is actually recorded. And the same time, what is the requirement of the water in different sectors, domestic agriculture, commercial, industrial, tourism, fisheries and all. And one more thing, very important, every month we have divided into 3 sectors, 10 days is 1 segment, so that in an year we have 36 segments. So for all these 36 segments, this type of water budgeting has been prepared in 350 out of 1000 Gram Panchayat, 350 Gram Panchayat already completed this exercise, basically by people's participation. We will do only the training, we will do only a customized Excel sheet, remaining the people's participation, the elected representatives as well as the citizens will do. And some of the adaptable options for climate smart agriculture, I will not detail everything because of the time constraint, but still water saving technology, integrated farming system, organic farming, different crops and mixed systems, precision farming, wasteland management, improved weather-based agro-advisory, very important, agro-horticulture, rainwater harvesting, crop insurance, and so many things. And that's a few things which I came across during my service in last 2-3 decades. Actually, you see one person, actually I was in Hyderabad for some time with the National Academy of Agriculture Research Management. One fine morning, one person came, he is a returnee from US, he's an Android, he wanted to start a company. And he wanted to actually support the farmers. So we suggested, why don't you start ET-based irrigation scheduling system? Normally we see the soil moisture content using the sensors, but we are not looking towards the crop. We are only looking towards the soil. So that here he developed an ET-based, evapotranspiration based. What is the exact water requirement of the crop? Kitna pani or particular crop ke liye chahiye, that particular time. So that we are measuring and we are doing. So that basically he
install an automatic weather station, and he will find out the ET using the modified Penman-Mondiath equation. There's a soil moisture sensor. Everything will go to an algorithm, and algorithm will decide how much water has to go to each crop at a particular time. And another gentleman, Taran, he's also my friend. He started a startup company in Mohali. It is basically, if you go to any place, enable the mobile app, it will tell you what is the NPK based on the soil health cards. And it will also get the hyperspectral images, and it will tell you any place of the, his land have a nutrient deficiency or insect attack, and accordingly things can be done. So many, electronics and artificial intelligence, hierarchical algorithms or IoT systems, many people are using. Recently, a Maharashtra person approached us. He invented a mobile app. Basically, he is finding out what is the depth of water in a borewell. Very difficult to find out the depth of water in a borewell. So that he developed a mobile app. So you go to a borewell, tap on the cap of the borewell with a metallic thing. He will just find out how much time the sound wave took to reach the water table and come back. So that we validated it, and we found it is 99% accurate. You can also download it. Its name is Phoojal. It is available in Google Play Store. And hyperspectral is another area. With a short time, we can find out the NPK status or water content in the soil. Because first we have to develop a library, and just we will compare with the spectral signatures. And we developed another, one irrigation scheduling. Here also we can see what all of the major crops here. Accordingly, we can develop this type of things. Each month, each time, what is the exact water requirement for a particular crop. Similarly, many electronics related or AI based softwares and systems we developed. And one more thing is very important is community water management. Whether it is in Kerala or Karnataka or in any part, this is actually Kerala-Karnataka border. There are horizontal wells. It is called Surangam. 24/7 water is coming. It is dug horizontally. So these type of things, how best we can survey, validate it, refine it, and again, make it more scientific and disseminate it, the technologies. Similarly, many things, different parts. I was in Northeast for some time. In Nagaland, you can see Zabo irrigation system. It's a fantastic, system. First, the first check basin will be filled, then water will come to the second one, so that gradually entire area will be properly, without any wastage of water, it will be properly irrigated. And rainwater harvesting, we are speaking for last many decades, very important, whether it is roof water harvesting or, across the world. Some are from Sri Lanka, Nepal. They all taken by myself alone, directly. And line point is also very important. For irrigation, we have to collect water in a big way, so that we can think about line pond. These all are we constructed, different parts of the country, in Northeast, in Goa, or in Kerala, and many other places. And again, one more invention we have recently had is a small mobile app, so that you go to any places, and you can, with a kit you can find out the water quality parameters, and the water quality parameters can be put it into this mobile app, so that it will be connected to the GIS, one of the layer of GIS map, so that for example, the mayor of my city, Calicut city, she can find out there is a nala, there is a big, water, there is a nala basically, it is, it is not properly maintained. So she can find out some hotspots are there, some areas are actually having water quality issue. So that every day this will be measured. We have found out, we have actually identified a few volunteers. They are going every day doing the water quality and put it in the mobile app, and the mayor is getting the geographical GIS map, the satellite map, and she can find out which area is actually having issue. And water quality, yesterday many people were telling, Professor Decker was also telling, so that these type of different types of water quality systems, we have developed a different filtration system for different users, for surface water, for roof water, and also for water recharge. Again, if you give water directly to aquifer, it has to be properly filtered. So that we developed one system, and we got an award from WEF also. Then another thing Rajiv Ranjan was telling just now, the carbon mapping. That is another major area. A lot of things are actually going to happen in the future, years to come. I'll finish in 2 slides, so that in next issue of Current Science, a paper is coming. Please go through that. In October 10th issue of Current Science, we are going to publish a paper. So that basically developing a framework for carbon footprint assessment of Indian agriculture scenario. Basically what we can do. I'm going to the last slide. What is the roadmap for Damtari? So first is, we have to think about, climate smart, carbon neutral,
climate resilient villages or communities. We can develop a pilot area, or we can actually empower how they can become carbon neutral and climate resilient. Again, develop climate action farmers club, eco clubs, water volunteers, climate preparedness programs, campaign, climate smart agriculture. In a few areas, we can think about these type of electronically controlled AI-based climate smart agriculture, community-based activities, waste management, carbon emission reduction, pollution abatement, participatory climate change action, precision farming, micro irrigation, rainwater harvesting, groundwater recharge, watershed management, livelihood improvement based on natural resources management, and everything we told. This is my last slide. I will just tell one word about this, that newspaper cutting. It is in Malayalam. One river in Kottayam district of Kerala, it is called Meenachal River. Every year it creates a lot of problem. Flooding, it creates a lot of problem to the lives and property of people. So what the people have done, government is doing something, but it is not enough. So that what the community came together, they installed rain gauges, they installed weather station, they installed staff gauges in the river, and they made a association. It is called Meenachal Rain and River Monitoring Agency. And when there's rain happens in the catchment area, immediately they will get the information. It will be processed by a central unit, managed by the public only. And the information will go to that means on the tail enders, other people, where the flooding may happen. So the rain happened, there is a chance to, there's a water inundation in the river. Immediately you have to that means vacate or evacuate from the place, or remove your properties and other belongings. So this is very effectively happening. We are giving the technical advice. IIT Pune is also giving technical advice. So that my point here is how the community can empower themselves to manage the climate. We have research organization, we have many social organizations, many community leaders. We can provide you the strength. But finally, the activity has to happen from the community itself. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Samuel. This is a very interesting presentation because the core of the climatic condition and the climate change and its impact in our water cycle completely destabilizes how we can use it, right? And what is left for us to use it. So thank you very much. Really appreciate it. Are there any questions for Dr. Samuel? कोई सवाल है Dr. Samuel के लिए? हम 2 सवाल ले सकते हैं. Okay, जब तक आप सोचें, Dr. Samuel, I had a question for you. You spoke about the climate smart agriculture a couple of times, and I saw in many slides you were trying to emphasize on it. And specifically in the last slide, you also talked about what Dhamtari can do. Can you elaborate on the role of policy support for scaling up this kind of practices across regions? That's a good question, sir. Actually, I can actually give the example of Kerala state. So our Chief Minister told by 2050, Kerala will be carbon neutral Kerala. So that what we have taken, actually one of the legislative assembly constituency we have taken as a pilot, we are giving the technical this one. So we are actually now mapping the entire that LA constituency consisting of 7 panchayat. So we are actually finding out the carbon map first. What is the emission from different sectors, whether it is energy, transportation, pollution, or afflu, or whatever it is. Then what is the sequestration potential of that one? So that is the first mapping part. Now the mapping part is over. Second part, actually, we will put this thing before the community in the Gram Sabhas. So that we were telling this panchayat, there are a lot of emission because of transportation. So that the MLA is giving cycles to the students. Instead of the parents leaving them in the school in the morning in the motor vehicle, they can use cycle. If energy means they are giving the rooftop solar systems. Or similarly for sequestration, some Miyawaki forest. And again, similarly every area where we have weakness, so that how that weakness can be managed and we can leverage on our strength. Basically, accordingly the planning process will happen and interventions will be taken in the future. Yeah. Thank you very much. Any questions for yes sir? एक mic देंगे उनको please audience में. एक hand mic दीजिएगा please. Sir, kindly introduce yourself and please ask the question. A very good morning to all of you, and I'm Professor Kola, and I teach biotechnology in Amity University.
My question to Manoj ji is that uh, we look or we work in silos, like you are telling about the Kerala success story or Kerala state implementation. Why we are not planning for the entire nation? Is there anything which is inhibiting? But I also appreciate that you came here and you're sharing the views. At the last slide, you told that Dhamtari plan is there. So are we working towards that? Sir, actually, we had two discussions with Niti Aayog. One is about water budgeting. It was almost 1 month back. So that Niti Aayog is now thinking about developing the water budget for the hotspot, the drought, or mainly drought affected areas in India. So that basically we will make the segment wise micro level water budgeting. So they are seriously thinking. Second is again the farm gate carbon mapping is also one of the area Niti Aayog is thinking. Once, two, 3 times we had a meeting with them. Many partners were there. So basically they are thinking to map the carbon emission within a farm gate. And it will be, if you are earning, if you are actually producing negative carbon, that means you are not emitting, rather sequestration is more, it will be coming as a positive point and it will be converted as per the global standard to amount, to money, and it will come to your bank account. So in Punjab and Gujarat, they are going to start, immediately. Advisor Dr. Neelam Patel, she is actually looking after this particular project. So it is also, these two things, Niti Aayog is also seriously thinking as per my information. Thanks. Thank you. Thank you very much for this question. Any other question? Anyone else? Thank you. So, in fact, Dr. Kola, thank you very much for that question. एक चीज और है इसमें कि the country is very large and topography and geography keeps on changing. So, having a one single policy for the entire country sometimes becomes very, very challenging. But exactly what Dr. Samuel said, that there are certain policies of benefits and incentives which can actually encourage some good practices, and those at least can be across the country. So we now would like to move to our next speaker, and before I introduce him, I want to say that when I was working in Punjab for the stubble burning issue, ये जो खेत में आग लगाने का, पराली जलाने का इशू होता है, उस पे जब मैं काम कर रहा था, तो आई रियलाइज दैट ट्रेनिंग एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. उस ट्रेनिंग के वजह से हम लोग करीब 11% 12% के ऊपर वो फार्म फायर इंसिडेंट्स को हम घटा सके. सो आई वुड नाउ लाइक टू इनवाइट मिस्टर गणेश थोराट, who is from the NAM Foundation, and I would request him to share some insights on the training programs that he has been doing. Mr. Thorat, over to you. While Ganesh is getting his presentation ready, we can facilitate Dr. Samuel because he has to leave. So the facilitation committee can come and felicitate him. मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर और इस प्रोग्राम के लिए आए हुए आप सभी लोग, सभी को मेरा प्रणाम. नाम फाउंडेशन के बारे में कहूँगा तो ये जो संस्था है, आदरणीय नाना पाटेकर जी जो फिल्म एक्टर है, उन्होंने शुरू की थी. इसकी शुरुआत कैसे हुई ये 1 मिनट में आपको बताऊंगा, और फिर मैं कैसे हमने कम्युनिटी के साथ मिलकर ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम किया ये बताऊंगा. एक्चुअली हुआ क्या था, 2012 से लेके 2015 तक महाराष्ट्र में बहुत बड़ा ड्राउट आया था. इसकी वजह से बहुत सारे हमारे फार्मर्स भाई थे वो सुसाइड कर रहे थे. वो सुसाइड का एक ग्लोबल इशू बन गया था, और उस वक्त आदरणीय नाना पाटेकर साहब ने सामने आके इन फैमिलीज़ को हेल्प करने के लिए शुरुआत की थी. और ये उन्होंने जब शुरुआत की थी तभी सभी लोग सामने आके फिर उनको वहाँ पे मॉनिटरी हेल्प करने लगे. फिर उसका एक अकाउंटेबिलिटी रहे, इसलिए नाना साहब ने एक NGO की स्थापना की, उसका नाम है नाम फाउंडेशन, जो 2015 में शुरू हुई थी. और पहले 1 महीने में ही हमें 63 करोड़ रुपए डोनेशन मिल गया था. पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से हमें लोगों ने डोनेट किया था. तो उसके बाद में हमने फिर इतना पैसा आया तो फिर क्यों ना ये फैमिलीज़ की सुसाइड हो रही है, फार्मर्स फैमिली की, उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाले. इसलिए एक पुणे में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ली थी सर, जिसमें आज पवार साहब भी यहाँ पे है. ऐसे बहुत सारे एक्सपर्टीज़ है, वाटर एक्सपर्टीज़ थे, जियोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ थे, एग्रोनॉमिस्ट थे. इन्होंने सब ने मिल के
नाना साहब को सुझाव दिया कि जिस गांव में वाटर स्कैरिटी है वहाँ पे हमें उसी गांव में उसी लोगों के साथ मिलके उनको ओनरशिप देके हमें काम करना होगा, तभी जाके ये मॉडल सक्सेसफुल होगा। तो इसके साथ में हमने एक वाटर कंजर्वेशन के ऊपर जब काम शुरू किया, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा करके आपको इलाका पता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सुसाइड होता है, तो उसमें से 83 विलेजेस हमने पहले आइडेंटिफाई किए थे। उस 83 विलेजेस में हमने फिर कम्युनिटी के साथ बैठ के उनके साथ फिर मीटिंग ली, गांव में उनको समझाया कि जब भी कोई गांव बसता है तो वो पानी की वजह से ही वहाँ पे बसा होता है। तो आज आपके पास पानी नहीं है तो उस पानी को हमें ढूंढना होगा, जो नेचुरल रिसोर्सेस है गांव के उसका हमने सर्वे करने के बाद हमें पता चला कि एक तो उसके ऊपर बहुत सारा सिल्ट आया है और दूसरी एक चीज़ थी कि उसके ऊपर एनक्रोचमेंट बड़े पैमाने पे हुआ था। तो हमने एक फार्मूला निकाला कि जब भी हम गांव में काम करेंगे तो मशीनरी नाम फाउंडेशन प्रोवाइड करेगी और उसका जो ईंधन होगा, जो डीजल उसका लगेगा, वो गांव को खुद उसके लिए कंट्रीब्यूट करना होगा। तो इसकी वजह से हुआ क्या था कि गांव के लोग शाम को बैठने लगे, सोचने लगे कि किस तरह से डीजल के लिए पैसे हम कलेक्ट करें। उसमें बड़े पैमाने पे महिलाओं ने आगे आके काम किया कलेक्शन के लिए, जो फंड्स उनको डीजल के लिए लगने वाले थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये काम आज नहीं होगा तो बाद में कभी होने वाला नहीं है। फिर उसके बाद में जो गांव का यूथ था, वो यूथ ने क्या किया कि गांव से बाहर जो माइग्रेट लोग हुए हैं उनसे पैसे मांगना, उनको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, नाम की टीम यहाँ पे आई है, अपने गांव में ये ओड़ा नाला है या फिर तालाब है, इसको डिसिल्ट करवाना है, इसको रिज्यूनेट करना है। और गांव के जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने सर हमें डिमार्केशन का काम करके दिया। तो इस तरह से पूरे गांव के लोग उसमें जुड़े थे सर। और मशीन जब भी हमारी नाम फाउंडेशन की किसी गांव में जाती थी तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर वो मशीन के साथ में खड़े रहते थे, क्योंकि उसका पैसा उसमें लगा था, किसी का 100 रुपये लगा था, किसी का 500 रुपये लगा था। तो उनकी जिम्मेदारी बनी, उनकी एक ओनरशिप आ गई उस काम के बारे में, और वो इतने अच्छे से काम हुआ। और जो इश्यूज थे, मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे इंक्रोचमेंट उसके ऊपर हुए थे वाटर बॉडीज़ के ऊपर, वो गाँव के लोगों ने खुद ही सॉल्व किए, खुद ही बैठते थे अपने आपस में चर्चा करके उन्होंने सॉल्व किया। इसकी वजह से ये हुआ कि उनके बीच में जो संवाद होने लगा, लोग बैठने लगे, जो कुछ उनके बीच में झगड़े थे वो कम होने लगे, पॉलिटिकल उनके जो इश्यूज थे वो भी लोगों ने छोड़ दिए, क्योंकि हमारा रूल ही वैसा था कि जहाँ पे पॉलिटिकल इशू रहेगा उसमें हम काम नहीं करेंगे, उस गांव में हम काम नहीं करेंगे। और बहुत अच्छा सक्सेस सर वहाँ से मिलता गया। आगे जाके फिर हमने गांव में अलग अलग तरीके से फिर ये वाटर कंजर्वेशन काम हुआ। सुसाइड फैमिलीज़ के जो महिला है उनके लिए कैसे उनको अर्निंग शुरू कर सकते हैं, उनको अपने पैरों पे कैसे खड़ा कर सकते हैं, उसके लिए काम किया। ये जो बच्चे हैं सुसाइड फैमिलीज़ के, उनके लिए हमने एक स्कूल शुरू किया जहाँ पे 1st से लेकर 10th तक उसका फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा खर्चा हम उठाते हैं। आगे जाके सर ऐसा हो कि महाराष्ट्र में 2-4 साल बाद ऐसा हुआ कि फ्लड्स आने लगे। कोल्हापुर सांगली का बहुत बड़ा फ्लड्स आया, चिपळूण करके हमारे कोकण में फ्लड आया। फिर उसके ऊपर भी हमने यहाँ पे जैसे एक्सपर्टीज़ है वैसे एक्सपर्टीज़ का हमने जब उनसे एडवाइस मांगी तो उन्होंने कहा कि जो नदियाँ है उसके ऊपर काम करना होगा, उसको डिसिल्ट करवाना है, उसकी जो उसका स्वरूप है, पहला स्वरूप, उसको फिर वापस लाना होगा। इस तरह से फिर हमने नदियों के ऊपर भी काम शुरू किया। हमने कोल्हापुर सांगली के डिसिल्टिंग का काम नदियों के ऊपर किया, कोकण के रिवर्स हमने रिजर्वेशन का काम किया। और पिछले 2-3 साल से जहाँ पे भी हमने ये काम किया है वहाँ पे फ्लड्स आए नहीं है। फिर क्लाउड बस जहाँ पे होता है, आपको पता है पहला सबसे बड़ा जो डिज़ास्टर होता है वो फार्मर्स को होता है। तो हमारे यहाँ पे कोकण जो इलाका है वो पहाड़ी है, तो फार्मर्स का क्या होता था कि उसकी पूरी सॉइल निकल जाती थी क्लाउड बस की वजह से, और वो खेती करना छोड़ देते थे। तो वहीं पे फिर हमने काम शुरू किया, हमने मशीनरी प्रोवाइड की, वही फार्मूला उसके साथ हमने रखा कि मशीनरी नाम की रहेगी, डीजल आप डालो और अपना जो खेत है उसको आप फिर से रीडेवलप कर सकते हो। तो यही फार्मूला है, लोगों के साथ बैठते हैं, गांव के साथ बैठते हैं, उनको पूरा ये वाटर कंजर्वेशन का जो कुछ कल हमने प्रेजेंटेशन पोपट राव सर का देखा था, उस तरह से वो पूरा इन्फॉर्मेशन हम उनको देते हैं। मशीनरी क्या काम करेगी, आपको कितना डीजल का रिक्वायरमेंट है, कितने पैसे आपको कलेक्शन करने हैं, ओडा नाले के ऊपर हम जो बांध बनाएंगे या हम चेक डैम्स बोलते हैं उसका क्या यूज है, उसकी वजह से होने क्या वाला है, कैसे वाटर ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ता है, आपको ऊपर का पानी जो है वो बारिश में होगा, लेकिन ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर जो है बाद में आप बारिश के बाद में किस तरह से यूज कर सकते हो, ये सब चीज़ें हम गांव वालों को समझाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा भागीदार हम यूथ को बनाते हैं, क्योंकि मैंने जब भी देखा है जो यूथ हमें उस गांव में जुड़ा तो हम एक 10 लोगों की वाटर बॉडी बनाते हैं उस गांव में,
जब भी उस गांव का सक्सेस मिलता है सर, वाटर कंजर्वेशन के काम में सक्सेस बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि बारिश से पहले आपको काम करना है, बारिश होने के बाद का आपको वो सक्सेस दिखना लगता है। तो ये जो यूथ था वो 10 लोग फिर 10 गांव में जाते हैं आगे, और अपने गांव का सक्सेस उन गांव को बताते हैं और उस गांव को फिर तैयार करते हैं। तो इस तरह से हमारा नेटवर्क पूरे महाराष्ट्र में तैयार हुआ है। कम से कम 14,500 अभी वॉलंटियर्स महाराष्ट्र में हमारे काम कर रहे हैं। 1 लाख वॉलंटियर्स हमें पूरे देश में अभी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन ये है कि नाना साहब ने पहले ही कहा है कि नाम फाउंडेशन में जो भी लोग जुड़ेंगे, जिनका पेट भरा है वही दूसरे भूखे लोगों के लिए काम करेंगे। तो हम किसी को सैलरी नहीं देते। तो हमारे साथ जो भी जुड़े हैं वो सारे वॉलंटियर्स हैं। आज भी हमारा जो एक्सपेंस है, जो एडमिन कॉस्ट है वो 1% है। तो इस तरह से वो भी नाना साहब खुद के जेब से देते हैं। तो CSR कंपनी भी जब भी हमारे साथ में जुड़ी है तो वही रूल हमने रखा है कि लोकल कंट्रीब्यूशन उसमें रहेगा, तो ही हम CSR में भी काम करेंगे। तो इस तरह से अभी एक अच्छा माहौल महाराष्ट्र में बना है। लोगों को पता है, हर घर में हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र के। जब भी कोई इशू आता है, जब भी कोई उनको नीड है, वाटर की होगी या फिर दूसरी कोई स्कूल की होगी, सब लोग हमसे जुड़े हैं। एक फैमिली की तरह जुड़े हैं उनके साथ में। एक विश्वास जगाया है नाना साहब ने अलग तरह से। अभी हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अदर स्टेट में। हम कश्मीर में काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हमने अभी 14 ऐसे स्कूल है जिसको अडॉप्ट किया है, जो आतंकवादियों ने जला दिए थे। वहाँ पे भी हम वाटर क्राइसिस, आपको भी पता है जम्मू में भी अभी फ्लड्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे काम कर रहे हैं हम। यूपी में गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहे हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी हमने ऑलरेडी एक काम शुरू किया है दंतेवाड़ा में। कलेक्टर है वहाँ पे, उनके साथ में जुड़ के हम ये अवेयरनेस और वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए हेड्स बहुत है, बहुत हेड्स में काम कर रहे हैं। अभी बताना जाएंगे तो मुझे 1-1.5 घंटा लगेगा, लेकिन टाइम लिमिट मुझे पता है, इसलिए सबको मेरी दरख्वास्त है कि अगर नाम का काम आपको चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके आप देख सकते हैं। दूसरी बात है, कल से यहाँ पे हूँ अपने छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ। कलेक्टर मैडम का आग्रह था कि हमें आना है, तो हम आ गए। वो आज पता चला वो भी मुंबई से है, तो घर की है वो। लेकिन उनको वही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ ज़रूरत होगी, अगर हमारी संस्था की तरफ से आपके यहाँ पे कुछ काम होगा तो आप हमारे साथ जुड़िए। हम तैयार है यहाँ आके अपना जो एक्सपर्टीज़ है वो भी आपको देंगे। यहाँ की समस्या अलग हो सकती है, हम जानते हैं, तो उसमें भी काम करने की हमारी तैयारी है। बहुत सारे लोग आपके जैसे जुड़े हैं। मैं कल से सुन रहा हूँ बहुत सारे एक्सपर्टीज़, बहुत सारे अलग अलग विषयों पे यहाँ पे रिसर्च जो उन्होंने किया वो बता रहे। तो मैं उनको भी आमंत्रित करूँगा सर कि हम इतने बड़े एक्सपर्टीज़ है नहीं है, हमने सिर्फ लोगों के साथ जुड़ के काम किया है, लोगों की समस्या देखी है और उसके ऊपर काम किया है। टेक्निकली अगर आप हमारे साथ में आएंगे और वो काम, अगर कुछ वहाँ पे गलती भी हमारी तरफ से हो रही है तो वो भी सुधर जाएगी। और कुछ काम बहुत कम, इसमें बहुत बड़ा काम खड़ा करने के लिए आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है। तो चाहता हूँ कि आप जैसे लोग हमसे जुड़िए, आप पुणे महाराष्ट्र में आइए। हमने जो कुछ काम किया है वो भी हम आपको दिखा पाएंगे। आपकी तरफ से भी कुछ अलग तरह के वहाँ पे सुझाव होंगे, वी आर रेडी फॉर दैट। आप इस मंच से वो सबको बताना चाहता हूँ। नाना पाटेकर जी का एक संदेश आपके लिए है कि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है इस मंच से, क्योंकि आपको पता है कि एनवायरनमेंट और ह्यूमैनिटी दोनों के ऊपर हमें काम करना होगा। फार्मर्स के ऊपर बहुत सारे अत्याचार आज तक हुए ऐसे हम मानते हैं। आज उनके साथ खड़ा रहने के लिए हमें परमेश्वर ने हमें अगर चुना है तो हम उसमें कम नहीं, कुछ भी कम पड़ने नहीं देंगे। अगर कोई इश्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट हो, राज्य गवर्नमेंट हो, उनके साथ मिल के भी हम काम करते हैं। तो आप सभी को नाम फाउंडेशन के साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी को अगर नाम की कहाँ पे ज़रूरत है तो बिल्कुल आप बताइए। ये सब काम अभी मैंने प्रेजेंटेशन पीछे दिख रहा था, हर एक हेड्स में अलग अलग वाटर कंजर्वेशन का, जो रिवर रिजुनेशन से लेके गांव का छोटा सा ओडा नाला तक हमने किया है। सब नंबर्स वहाँ पे मैंने दिखाए हैं। आगे भी जाके काम करना चाहते हैं तो आपने यहाँ आके मुझे बोलने का मौका दिया। आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा। मंच के पे उपस्थित सभी मान्यवरों का फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ, और अपने गवर्नमेंट का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमें आज यहाँ पे बोलने का मौका दिया। Thank you so much. Thank you Ganesh. Thank you very much. Farming is a very difficult piece of work. खेती इतना आसान नहीं है। हम जैसे जैसे ग्रेजुएट करते हैं ऊपर, हमारी क्षमता, इकोनॉमिक क्षमता जैसे जैसे बढ़ती है,
हम लोग एसी कमरे में जाते हैं, पहले हमारे बाप दादा गर्मी में बैठ के लिखा पढ़ी का काम करते थे, अब एसी कमरे में बैठे, बट दैट इज नॉट वन वर्क दैट कैन हैपन इन केस ऑफ फार्मिंग. सो फार्मिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट. तो हमको अगर फार्मर्स के लिए कुछ भी करे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कम है. और जैसे सैमुअल जी बता रहे थे कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज क्लाइमेट इज ऑल्सो नॉट योर फ्रेंड एट दिस मोमेंट. एंड अगर पॉलिसीज भी हेल्प ना करे तो वहाँ पे इन लोगों को एम्पावर करना, इनका कैपेसिटी बिल्ड करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है. एंड थैंक यू गणेश जी फॉर लेटिंग अस नो. इट्स अ वेरी नोबल वर्क. एनी क्वेश्चंस फॉर मिस्टर थोराट? ओके, while you're thinking, I have a question, थोराट साहब आपके लिए. मुझे एक चीज़ बताइए, आपने बताया कि कैसे नाम फाउंडेशन इज हेल्पिंग पीपल इन स्मॉलर एरियाज जो है, जैसे छोटे गांव, छोटे कस्बे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. मुझे ऐसा बताइए कि ये जो स्मॉल फार्मर्स है, स्मॉल फार्मिंग, स्मॉल होल्ड फार्मर्स हैं, वो किस तरीके से अडॉप्ट कर पाते हैं, उनको हेल्प पहुंचाना कितना आसान है हमारे लिए? देखिए सर, एक कहावत है कि प्यास लगेगी तो कुआं आपको देंगे. तो वहाँ पे प्यास लगी थी लोगों को, बहुत 3-4 साल से वो बहुत तकलीफ में थे. सुसाइड कोई करता नहीं सर. समझे उस फार्मर की मानसिकता क्या होगी. अगर किसी कुत्ते को भी हम पत्थर मारेंगे तो वो भाग जाता है, लेकिन ये एक फार्मर अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के सुसाइड क्यों कर रहा है, क्या उसके पीछे के रीजंस है. तो वहाँ पे ज़रूरत थी सर, और एक आशा सिर्फ हमने दी और ओनरशिप उनको दिया कि हम आपके साथ में खड़े रहने के लिए तैयार हैं. तो घर की महिला आगे जाके बाहर आई सर पहले. तो उसने कहा कि इनके साथ मिलके काम करना होगा, तभी कुछ हो सकता है. तो महिलाओं ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके हमारे साथ दिया. और हमने क्या किया, हम पूरा पैसा भी उनको खर्चा हम भी कर सकते थे सर, लेकिन वो ओनरशिप आती नहीं. फिर वो लोग इतना सोचते नहीं. तो वो एक नाना साहब खुद घूमे ये पूरे गाँव में. वो खुद एक एक गाँव में जाके उन्होंने ये काम किया है, लोगों को समझाया है. तो इस तरह से होता है सर. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. मतलब नाना पाटेकर जी इसमें इन्वॉल्व है, ये सुन के ही मैं और ज़्यादा खुश हो गया. थैंक यू वेरी मच. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गणेश थोराट. So I always believe that while modern technology and modern science is very important, लेकिन जो हम लोग जानते हैं which is the traditional science, the old technology जिससे हमारे बाप दादा खेती बाड़ी करते थे, क्या हम उसको कितना इस्तेमाल कर सके, उसको कितना मॉडर्न के साथ मिलित कर सके. हमारे बीच प्रोफेसर एस विश्वनाथ हैं जो कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से हैं. इट्स अ वेरी गुड फाउंडेशन डाउन साउथ इन बैंगलोर. आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट इंस्टीट्यूशन. सो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से प्रोफेसर एस विश्वनाथ हैं हमारे बीच में, जो कि विल टॉक अबाउट the mix of modern and traditional sciences to actually improve water quality to a potable drinking level. Over to you. Thank you. Thank you for the introduction. I teach at the Azim Premji University. I'm with a small NGO called Biome Trust, and I'm talking about some of the work we have been doing, जो छोटा सा काम हम कर रहे हैं बैंगलोर के आसपास. तो 3 पहले के स्लाइड इंग्लिश में होंगे, उसके बाद मैं खाली तस्वीरें दिखाऊंगा. थोड़ी बहुत भाषा इंग्लिश होगी और थोड़ी बहुत हिंदी होगी. तो what we have found is that every village, every lake, every farm is different from another. So when we have to work, we have to put into place something called care, value and place. And we have to approach water, which we do through a process called social hydrology. That is to look at water not as a physical construct, but as a social construct, which is to be seen through the eyes of the people, especially the community, but the most marginalized and deprived in the community itself. So what we are dealing with is complex socio-ecological systems which cannot be easily understood, predicted or controlled in the era of climate change. And therefore we need an agile approach which looks at working with the community in a quick fashion and adapting. Because some of the water systems that we have inherited are from the feudal days. Now we have come to democracy, so we need to deal with it in a democratic fashion. Also, many of the tanks and lakes are moving from rural to urban. So therefore, how do we deal with them? Some examples is what I want to show. तो इसका इतिहास जो हम तालाब के बारे में बात करते हैं हमारे बैंगलोर के इलाके में, ये इसका इतिहास बहुत पुराना है, 1200 साल से पुराना है. कुछ कुछ जो तालाब बने हैं, जैसे आप दिख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, ये 800 AD का है और 870 AD का है. और इसे हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे इंस्क्रिप्शन स्टोन्स करके जो पत्थर मिलते हैं उस पर लिखा गया है. जैसे हम एम्परर अशोका के बारे में जानते हैं, बट दीज आर लोकल इंस्क्रिप्शन स्टोन्स विच आर अवेलेबल इन एवरी विलेज. और उससे हमें पता चलता है कि ये
तालाब कितने साल पहले बना। और ये तालाब कैसे बना? छोटा सा बांध डाला गया, जैसे यहाँ दिख रहा है, उसमें पत्थर लगाया गया और पानी को पकड़ा गया। It's a very small construct, not by engineers, but by ordinary people, and I'll come to who the ordinary people were. Just put an earthen dam across a valley, line it with stones, and hold on to water. And the whole landscape is dotted with these तालाब। हमारे कर्नाटक राज्य में 36,000 से ज़्यादा तालाब है। हर गांव में एक तालाब तो था ही। हर ग्राम पंचायत में करीब 2-2 तालाब, एक गांव के हिसाब से 20-21 तालाब होते हैं हर एक ग्राम पंचायत में। और ये तालाब क्या है? एक कैचमेंट है जहाँ से पानी आता है, उसका फीडर चैनल होता है, पानी तालाब में इकट्ठा होता है, एक बांध है, बंड बोलते हैं उसको, फिर नीचे पे कमांड एरिया है, अचकट बोलते हैं हम हमारी भाषा में, और उस अचकट में पानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए छोटे छोटे चैनल बने रहते हैं, और एक ओवरफ्लो वेयर होता है जहाँ से ओवरफ्लो होकर पानी चला जाता है। ये हर गांव वाला जानता है कि कैसे तालाब का सिस्टम काम करता है। ये ओवरफ्लो वेयर दिखा रहा हूँ मैं, जो पानी जब भर जाता है तो वो बह के चला जाता है। पर ये जो ओवरफ्लो वेयर का डिज़ाइन है, द डिज़ाइन ऑफ द ओवरफ्लो वेयर इज नॉट एन इंडिविजुअल टैंक डिसीजन, इट्स अ डिसीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ टैंक्स। सो देयरफॉर यू कैन सी दैट द ओवरफ्लो वेयर has been reduced by 2 inches because you need to fill the downstream tank. नीचे वाले तालाब को भी पानी चाहिए, ऊपर वाले तालाबों को भी पानी चाहिए, तो पूरा सिस्टम जो तालाब का है वो तय करता है कि कितना पानी किस तालाब में पकड़ा जाएगा। और इसके साथ समाज भी जुड़ा हुआ है, जैसे वहाँ पे दिखा रहे हैं हम नीरुगंटी। ये लोग वो थे जो हर खेत में पानी जाने का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम संभालते थे। हर खेत में पानी जाना है, ये इनके पास जमीन नहीं होता था, पर इनकी जवाबदारी ये थी कि हर खेत में पानी जाए। और गंगम्मा ये जो एक फेस्टिवल है, जब तालाब भर जाता था और ओवरफ्लो होता था तो हर गांव के हर एक घर से कुछ न कुछ धान दिया जाता था और एक सामूहिक फेस्टिवल मनाया जाता था। हाँ, ये गंगम्मा करके उसे छोड़ा जाता था फ्लोट में। तो ये सोशल कल्चरल इश्यूज भी जुड़ा हुआ है हमारे तालाबों के साथ। लेकिन एक समस्या आती है, क्योंकि गांव में जो हमारे गांव में जहां हम काम करते हैं वहां लैंड ओनरशिप करीब खाली 20% लोगों के पास तालाब के नीचे वाला जमीन है और करीब 70 से 80% लोगों के पास जमीन ही नहीं है। तो यदि तालाब में पानी आया तो जो 70 से 80% के पास जमीन नहीं है उनको क्या फ़ायदा हुआ? जितना भी पानी आए तो उनको तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जो किसान जिसके पास ज़मीन है उनको तो फ़ायदा होगा, लेकिन वो 2-3 क्रॉप भी निकाल लेंगे, तो वो उस गांव में इनिक्विटी बढ़ सकती है। इनिक्विटी यानी जो दरार बढ़ सकती है, तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए जब हम तालाब का रिजुविनेशन करते हैं। तो ये देखते हैं आप धान, कई बार हमारे साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि पैडी इज़ अ वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप, सो यू शुड नॉट ग्रो पैडी, मिलेट्स लगाइए। पर ये जो कमांड एरिया है, दिस हैज़ बीन कल्टिवेटेड ओवर सेंचुरीज एंड इट हैज़ बीन पडल्ड एंड क्ले यहाँ पे जो आ गया है, यू कैनॉट ग्रो एनी अदर क्रॉप, यू कैनॉट ग्रो मिलेट्स इन दिस कमांड एरिया। Therefore, we have to grow paddy, and it is inevitable to accept that certain ecosystems will need paddy to be grown. We can be more efficient with the paddy that we grow. We use less water. But remember, till water is valorized, there's a price to water, there is no incentive to save it. तो देखिए ये हमारे सेमी एरिड कर्नाटका का दृश्य है, जहाँ 500 से 700 मिलीमीटर बारिश होती है, 10 साल में से बारिश कम होती है जहाँ पे सूखा आता है। तो उस इलाके में भी जब बारिश आती है तो किसान जो है उसको कम्प्लीटली धान में बदल देता है, क्योंकि धान को हम पकड़ के रख सकते हैं, पानी को हम पकड़ के नहीं रख सकते हैं। धूप हमारा दुश्मन है, धूप के कारण इवेपोरेशन हो जाता है। तो ये जो चैनल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जरिए हर खेत को पानी जाता है। दीज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर क्रूशियल इन द कमांड एरिया बिकॉज दे टेक वाटर टू एवरी field. That has to be ensured if there's a revival of the tank ecosystem. And then groundwater has a very important role to play. हमने क्या देखा है, when I talk about care value plays, is that every aquifer is different from the other. We cannot generalize easily. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कुएं में पानी भरा हुआ है, 2 फुट पे पानी है, लेकिन इसी इलाके में आप बोरवेल डालोगे तो 1000 फुट तक आपको पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि द शैलो एक्विफर इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द डीपर एक्विफर. देयर इज नो वर्टिकल कनेक्टिविटी इन मेनी ऑफ आवर एक्विफर्स बिकॉज ऑफ अ क्ले लेयर एंड ऑफ अ हार्ड रॉक लेयर. तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि सब एक्विफर्स कैसे काम करते हैं, और सब एक्विफर पे कुओं पे ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा. इसके लिए मैं आऊँगा कि क्यों कुओं पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. बिकॉज दिस इज लाइफ लाइन वाटर. These wells are critical to us even for Jal Jeevan Mission. It is critical for agriculture, but also for Jal Jeevan Mission it is critical because they have been also integrated with the lake ecosystem. Lakes and groundwater, surface water and aquifers have been talking together for centuries. जैसे ये बढ़िया सा कुआं बना है, ये किसी किसान के खेत में बना है. ये बड़ा वो स्टेप वेल नहीं है जो गुजरात या राजस्थान में पाया जाता है.
लेकिन ये भी एक कारीगरी है, बहुत अच्छी कारीगरी है। और इसी के कारण ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी भी मिलेगा, क्योंकि जल जीवन मिशन में 55 लीटर पानी हर घर हर नल में पहुंच तो जाएगा पर कैपिटा, पर कभी कभार मोटर खराब हो गया या बोरवेल खत्म हो गई तो समाज इस कुएं की तरफ जाएगा, और ये कुआं कभी सूखेगा नहीं जब तक कि तालाब में पानी है। और जैसे ये गांव में ये कुआं करीब 120 साल पुराना है और ये 120 साल में कभी नहीं सूखा है, यानी कम से कम 100 फैमिलीज को पानी हरदम देता है। तो हमारे जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं वाटर का, क्योंकि पानी वाटर रिसोर्स को लेके हम हर घर में दे रहे हैं। जो कम्युनिटी एसेट है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसको भी जोड़ा जाए जल जीवन मिशन के साथ तो बहुत इम्पैक्ट रखेगा। क्लाइमेट रेजिलियंस जिसकी बारे में बात करते हैं वो आज आ सकता है। तो वी मस्ट थिंक ऑफ कम्युनिटी वाटर एसेट्स इंक्लूडिंग इंडिविजुअल वाटर एसेट्स विथ हाइड्रोजियोलॉजी इन माइंड एंड हाइड्रोजियोलॉजी एट अ हाइपर लोकल लेवल, राइट? And we must think of sheep, goat and cattle very crucially, because those who are landless have the small ruminants with them. जिनके पास जमीन नहीं होता है उनके पास भेड़ बकरियां ज़्यादा होती हैं, तो ये जो तालाब का पानी है कम से कम 1/3 इनके लिए रखा जाए जब भी सूखा आए, जो भी साल में आए, so that the water reserve for small ruminants helps those who are landless. मछुआरे का काम हुआ तो वो भी लैंडलेस के लिए रखा जाए। और नारी शक्ति से जल शक्ति जो काम यहाँ पे हो रहा है वो सबसे बढ़िया काम है, क्योंकि हमने भी देखा है कि जहाँ महिलाएं आगे आती हैं और ये तालाब का पुनश्चेतन करती हैं तो वहाँ पे बहुत बढ़िया काम होता है। जैसे ये फीडर चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे काम कर रहे हैं महिलाएं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि CSR फंडिंग, जैसे नाम फाउंडेशन का फंडिंग आ जाए या फिर CSR का फंडिंग आ जाए, वो इस ढंग से आए कि खाली वो पैसा JCB और ट्रैक्टर को न जाए बल्कि महिलाओं के वेतन पे जाए। हमारे वहाँ नरेगा में 345 रुपया प्रतिदिन मिलता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि महिलाओं को 500 रुपया मिले जब ये काम करते हैं। 100 दिन का काम CSR फंडिंग के जरिए, 100 दिन का काम नरेगा के जरिए और 50 दिन का काम फार्मर के खेत में मिल जाए, तो 250 दिन का काम भी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। इट इज इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो देयरफॉर विमेन आर एट द हार्ट ऑफ रिजुविनेशन ऑफ द टैंक इकोसिस्टम। ये देखिए पूरा महिलाएं काम करती हैं, कुछ मर्द भी जुड़े रहते हैं, लेकिन आप 500 रुपया तय कर ले तो 50 रुपया का खाना भी बनाया जाता है और दिया जाता है उनको, और उस गांव वाले ही वो खाना बना के खिलाते हैं महिलाओं को। तो हमारा सक्सेस का मंत्र ये है कि जब ये यहाँ पे गाना वापस आ जाए, द सॉन्ग्स ऑफ द पैडी शुड कम बैक टू द फील्ड, दैट इज वन ऑफ आवर मेजर्स ऑफ सक्सेस ऑफ द आउटकम ऑफ और द वर्क दैट वी डू विद द पीपल देयर। सो व्हाट हैपेंस इन अ सिटी? इन अ सिटी लिक्विड वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट बिकम अ बिग प्रॉब्लम। बहुत सारा आ जाता है लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट, तो इसको कैसे हैंडल किया जाए? यहाँ पे अगेन फिशरमैन आर एट द हार्ट ऑफ द रिवाइवल ऑफ अर्बन लेक्स। इफ दे आर इन्वॉल्व राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, दे विल रिमूव द वाटर हैसिन्स एंड द प्लास्टिक्स दैट कम टू द लेक. Not only that, their livelihoods will be enhanced. So again, revival of an urban lake through a livelihoods based approach in an urban area where fish and proteins come to the city and livelihoods comes to a fisherman's cooperative. Plus additional benefits such as grass cutting, weed for cattle within the city, and foraging for small herbs and shrubs within the city for those who are the most deprived, local communities who gain the most. Therefore, water is not only about the physical construct, it's about how water is to be restored and revived, and it should be through a livelihoods approach. Kyunki uske baad the ecological benefit also comes in. You have now painted storks and pelicans coming into the city, and perhaps hopefully we will also declare some of the tanks in our city as Ramsar sites, as you are planning to do here. Why not have Ramsar sites in the heart of cities themselves where wetlands are protected and are rejuvenated through a livelihoods approach? Because then the groundwater table also comes up. And mind you, जो तालाब में पानी जा रहा है, that is also treated waste water. Treated sewage water जा रहा है उस तालाबों में बारिश के पानी के साथ, और वो जब फिल्टर होके धरती में से आता है तो इतना साफ आता है, इसको हम डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के साथ आसानी से जोड़ सकते हैं. और कौन ये काम किया था? हमारे शहर में ये जो कुएं खोदने वाले हैं, इनका नाम मन्नू वड्डर है. ये 1000 साल से कुआं खोदते आ रहे हैं, पर इनके पास अभी काम नहीं है क्योंकि सब लोग बोरवेल और बोरहोल की तरफ चले गए. तो इनको कैसे फिर वापस काम में लाया जाए, इनको कैसे लाइवलीहुड दिया जाए? तो ये लोग अब रिचार्ज वेल्स बनाते हैं. रिचार्ज वेल्स ये कि छत का पानी या रास्ते में बहता पानी उसको फिल्टर किया जाए और शैलो एक्विफर में रिचार्ज वेल के जरिए डाला जाए ताकि इनको भी लाइवलीहुड्स मिले. ये अब करीब 2.5 लाख रिचार्ज वेल हमारे शहर में बना चुके हैं. इनका गोल है 10 लाख बनाए, 1 million wells. That is our program. So 750 families of well diggers have jobs. Again, water security for a city through our livelihood security for the people who are engaged in that water security business in an era of climate change, right?
And I'll just end with this. So these well diggers are now learning a new skill of recharge wells and are doing it, but also in private layouts and gated communities. Wells are being restored by private real estate developers because they see it not only as heritage value but as functional value, which will provide all the houses and villas in their community with water, and thereby step wells like this are being beautifully rejuvenated by the well diggers. And wells are also community assets in our cities. When the wells have been redone and made clean and clear and disinfected with water, women do a remarkable thing. They say, don't put a pump. यदि आप पंप लगा देंगे इसमें तो ये पानी पूरा अपार्टमेंट को चला जाएगा, कुआं सूख जाएगा और हमें पानी नहीं रहेगा. लेकिन यदि हम जाए कुएं की तरफ और पानी निकाले 4 या 5 बकेट पानी निकाले तो ये कुएं में पानी हर साल रहेगा और हमें भी पानी मिलेगा. And so we have respected the women's voice in this revival of the well, and we've ensured that they get the minimum 20 liters, 30 liters which they need for water security and peace of mind. The last item that I want to discuss in the last 1 minute that I have is in a town called Devanhalli. 45,000 population where the international airport is located. ये देवनहल्ली का किला है और वो वहाँ का तालाब है. और जैसे आप देख रहे हैं इन बुजुर्ग के पीछे तालाब बिल्कुल सूखा हुआ था. इस तालाब को ठीक किया गया, डिसिल्ट किया गया, कैचमेंट के साथ जोड़ा गया और ये तालाब ऐसे दिखता है. ये तालाब में ट्रीटेड वेस्ट वाटर, ट्रीटेड स्वेज जो बैंगलोर का है वो भरा जा रहा है इस तालाब में पानी, बारिश के पानी के साथ. उसके बाजू में कुआं था. द वेल डिगर्स क्लीन्ड अप द वेल नेक्स्ट टू द लेक और अब वो कुएं में ऐसा पानी है. ये कुएं में 12 घंटे के पंपिंग में 3 लाख लीटर मिल जाता है. 12 घंटे हम रोकते हैं, फिर वापस पानी का लेवल वहां तक आ जाता है. इट्स मैनेज्ड एक्विफर रिचार्ज. वी मेड श्योर दैट देयर इज अ सेफ्टी सिक्योरिटी ग्रिल. हमने कुएं में और जहां जहां हमने फिल्टर बोरवेल बनाया है वहां मीटर लगाया है, क्यों, ताकि हमें पता चले कि हम कितना पानी निकाल रहे हैं ग्राउंड वाटर से. और फिर ये ट्रीटमेंट सिस्टम है, 130 माइक्रोन फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, यूवी स्टेरिलाइजेशन एंड क्लोरिनेशन. एंड वी आर डिलीवरिंग BIS 10500 ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी टू द टाउन ऑफ देवनहल्ली, डोमेस्टिक water supply to a town for the last 1 year and 3 months. This is as good as Israel or Singapore technology that we talk about, but done at 20 lakh rupees, right? 20 लाख रुपए में हम कर रहे हैं ये काम, ये जो टेक्नोलॉजी हो रहा है. और इसका फायदा ये देखा है हमने कि जब कुएं में पानी आ जाता है तो कॉस्ट पर किलोलीटर एनर्जी कंजम्पशन एंड कार्बन एमिशन ड्रॉप्स ड्रामेटिकली बाय फैक्टर्स ऑफ 10 and 20. कॉस्ट पर किलोलीटर ऑफ ट्रीटेड वाटर जो लास्ट कॉलम है आप देखिएगा, 1000 लीटर के लिए ₹1.23 है. दिस इज BIS 10500 ड्रिंकिंग वाटर, ₹1.23 per kiloliter. So you have great benefits in restoring lakes, linking it with sewage treatment plants and restoring it with aquifers and linking it together, all together. The approach is that of treating water as the commons. The 13 rules that Elinor Ostrom has given us. Think about institutions, look at change, embrace diversity, but be specific to the problem, listen to people, self-government is possible, everything changes in a dynamic climate change impacted world. Map power, collective ownership can work, human beings are part of nature too. Design systems for livelihoods, for nature and for functionality. All institutions are constructed, so can be constructed differently. No panaceas, and complexity does not mean chaos. We are all in the great journey of water literacy. जल साक्षरता के दौर में हम चल पड़े हैं. सभी को जल साक्षर होना है और हमें एक दूसरे से सीखना है. ये 2 दिन में मैंने बहुत लोगों से सीखा और मेरी तरफ से ये छोटी जो हमारी अनुभव है आपके सामने रख रहा हूँ कि हम लोग भी सीखें और आगे बढ़ें. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, Vishwanath. This is so good. Professor Vishwanath from APU, ladies and gentlemen. So, I picked up few things. 1/10 of a dollar for 1,000 liter water, or maybe even less. 1/100th of a dollar. So, for the people who are not accustomed of a rupee system, it's 1/100th of a dollar. That's the cost of purified, portable, quality drinking water. Amazing. I have so many questions, but I want to give the opportunity to the floor. कोई सवाल है? साहब थोड़ा उधर माइक भेजेंगे उन साहब को. Sir, kindly introduce yourself and ask your question. So I'm Professor Robin Datta. Actually, I'm from Assam, but I have been doing some work here in Kanker. That's why I came here. Okay. I have listened to so many interesting talks, but his was actually, I have one query on his talk to Dr. Vishwanath. I met him here also, but I asked him, he did not answer it completely. I just want to know how you purify the sewage, and the second thing, what you do with the byproduct of this treatment? Like do you get any gas or any solid? What do you do with the solid?
this product, byproduct? So there are two levels of treatment. One is at the sewage treatment plant itself, which is done by the Bangalore Water Supply and Sewerage Board. You get a byproduct which is sludge. Farmers take the sludge and apply it for their areca nut and coconut fields up to 100 kilometers away. A truckload of sludge sells for 15,000 rupees a truckload. So the sludge is all used. It's been checked for heavy metals, it's been checked for NPK, and it's been certified that it can be good use because this is domestic sewage that's coming in. The water treatment plant itself, there is no reject at all because we only have ultrafiltration, there's no RO. So there's no reject, only a backwash which comes from the activated carbon filter, which is put back to the lake. And this is the equivalent of about 50 liters in a day. 50 liters in a day of backwash that comes into that. There's no gas emission at all. The gas emission, the methane, which is in the sewage treatment plant, there is work to capture that as energy and to try to run the sewage treatment plant itself with the energy generated by it through an anaerobic decomposition process. But I'll be happy to continue the conversation with you later because our friend from Majuli is also doing very interesting work. Thank you very much. Very good question. Any other questions for Professor Vishwanath? Professor Vishwanath, I have been following your work and it's excellent. Thank you for this talk. I have two questions, if the chair permits. One is that, do you think that the water has to be declared as a national property, like what Israel has done? Because, we have given enough of thought, Jal literacy, everything we tried upon, but then things are not working. And this makes us very, angry inside, yeah. Second question. Yeah. The second question is the responsibility of only the rural women or the role of rural women to clean everything? What is the role of urban women in saving the water, or the urban population, not to marginalize the women? So let me answer your question very Right. quickly. I believe that water is a local resource. It should not be nationalized. That it is currently a state subject. It's only when two states have a sharing river that the union government comes into place. Water is both global and local at the same time. The best ownership and asset management will occur when it is local. That's my view, and so that's how it goes. In terms of urban women, it depends on the kind of women there are. The wells that I showed you, where the women said, don't put a pump, that's an urban area. So it's the urban women who are taking care of the well as well as the catchment for recharge of there. So everyone has to become responsible. When it comes to pipe water supply, urban women and urban men will be better off if they pay the true price for water. One of the biggest elephants in the room is we are not charging the price for water. And when we pay the true price for water, which is the true ecological cost of water, there will be no shortage of water, universal connection, and no pollution of the environment. But that's a different seminar in itself. I agree. One last question. Sab, udhar mic de dijiye. Sir, kindly introduce yourself and ask the question. आप सभी को नमस्कार। मैं अजहर हूँ, अजहर कुरैशी, और वाटर एड से आपके बीच में हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि उस कुएं की पूरी तरह से सफाई हम कितने दिनों में करते हैं? बिकॉज दैट हम कांकेर में ये कुआं हमारे लिए जीवनदायिनी बना है। वजह ये हुआ कि कुछ गांव ऐसे हैं, खजरावन और बाग नवापारी, जहाँ पे जब पूरी तरह गांव फ्लोराइड से भरपूर है, फ्लोराइड वहाँ पे अधिक है, तो इस कुएं ने उन लोगों को पानी पहुंचाई जो तरस रहे थे पानी के लिए। तो पूरी तरह सफाई ये कितने दिनों में किया जाना चाहिए, और उसके प्यूरिफिकेशन के लिए आप, जैसे हम यहाँ पे क्लोरीनीकरण करते हैं, तो आप उसकी प्रक्रिया को कैसे करते हैं, थोड़ा समझाने का प्रयास तो करेंगे। ये सफाई इस पे डिपेंड होता है कि कितना कचरा जमा हुआ है या कितना मिट्टी और रेत जमा हुआ है उस कुएं में। हर कुआं अलग होता है। हमने देखा है कि अर्बन एरियाज में कभी कभार हमें 1 महीना लग जाता है, पर गांव में तो हम 1 दिन में हो जाता है वो काम। 1 दिन में काम खत्म हो जाता है वो डिसिल्टिंग का। और उसको साफ सफाई के लिए हमने पहले वाटर क्वालिटी को चेक करते हैं, कौन सा कंपोनेंट को डील करना है या ट्रीट करना है, उसके हिसाब से होता है। बट सिंपल डिसइंफेक्शन के लिए एल्युमिनियम, पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन, ये 3 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, थैंक यू। Thank you very much. A big round of applause for Hello, sir. Professor Vishwanath from APU. We would now move to Rajiv Ranjan, who will talk about the startup that he is already planning and taking it forward. Thank you very much, Rajiv. I think before that, you have to leave. So then it's fine.
हाँ बिल्कुल नहीं, ये नहीं है, नहीं, ये रहा। Okay, so now I'm in a different role. I am presently right now founder of this organization called Ecopreneur. This Ecopreneur is basically working on the carbon emissions and accounting of carbon emissions, especially on the climate resilient agricultural programs. So when Partha, when we done the brainstorming session at the various IITs, so what we have found out, the methane is the main culprit. And when we reach to especially to the a conclusion or discussions, then we find out that the technology interventions which is required in the field of environmental concerns, especially in the climate resilient agriculture, is the most important part. And that's where this thought generated. We reached to IIT Ropar. We understand and we had a discussions, and then after we decided कि okay, क्यों ना कार्बन को मैप किया जाए, स्पेशली एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को लेकर करके। बहुत सारे थॉट्स आए और फिर हुआ कि ओके लेट्स स्टार्ट वन स्टेप एंड सो द फर्स्ट थिंग्स वी डेवलप्ड, वी कॉल इट लाइक कॉल द प्रिसिशन फार्मिंग कॉन्सेप्ट. This precision farming concept came along with the concept of agrovoltaic. It's a technology interventions along with that, at the farm related. मुझे चूँकि हिंदी में बोलना है तो मैं इसको थोड़ा सा और बोलेगा. सो जब मैंने ये स्टार्ट किया तो कुछ कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी चीज़ें थी. आई विल जस्ट स्किप द फर्स्ट पार्ट बिकॉज काफ़ी बड़ा है. सो जब क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चरल का कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया था तो सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास आई वो ये थी कि क्यों करना है ये और क्यों ज़रूरत है इस क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चरल कॉन्सेप्ट को लेकर के. तो जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी चीज़ें पंचभूता एलिमेंट, 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी है, तो इंटायर 5 एलिमेंट्स पे हमें वर्कआउट करना पड़ा. इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट द वाटर, इट्स नॉट ओनली अबाउट द सॉइल. जनरली हम एग्रीकल्चर में आते हैं तो 2 ही चीज़ों पे बात करते हैं, वाटर और सॉइल के बारे में. लेकिन उससे भी ज़्यादा हमें कुछ और चीज़ें दिखी, जैसे आपका मीथेन इमिशन, सो स्पेस सेक्टर्स, एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड. खेती के लिए अगर पानी चाहिए तो पंपिंग तो करनी पड़ेगी ना, तो क्यों ना उस पंपिंग का कुछ सॉल्यूशन लिया जाए. और खेत को अगर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो उस कॉन्सेप्ट के साथ में, और उसमें मार्जिनलाइज फार्मर के साथ साथ ये भी कॉन्सेप्ट आया कि क्या खेती में कुछ और किया जा सकता है. उस पूरे कॉन्सेप्ट को कंसेप्ट करने के लिए हमने एग्रोवोल्टिक करके प्रोग्राम्स को डेवलप किया प्रिसिशन फार्मिंग के अंदर में. एक कुछ और चीज़ें थी जो हमने खेतों में देखा, वो ये था कि आज जैसे मैंने खेती की, मिर्ची लेके आया, मेरे खेत में मिर्ची बहुत अच्छी हो गई, मिर्ची को तोड़ा और आज मार्केट में नहीं पहुंचा तो कल उसकी कोई वैल्यू नहीं है. नाउ इट्स अ वेस्ट, और फिर से वो मीथेन गैस इमिट करेगा. सो दैट्स वे वी केम विद द फुल कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हमने IoT टेक्नोलॉजीज इंटरवेंशंस किया, प्रोग्राम को दोनों चीज़ों के साथ मिक्स किया कि एनर्जी, रिसोर्सेस, वाटर, स्पेस और सॉइल, इन सारी चीज़ों के साथ काम किया जाए. एंड दैट्स वे दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर वी स्टार्टेड. 4 चीज़ों के लिए हमने काम करना शुरू किया. The first thing is like precision farming, which is like interactions or IoT based solutions. Soil में जब हमने इस पे काम करना शुरू किया तो सबसे ज़्यादा देखा कि पानी जो है वो हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना कि घंटे में नहीं कर करके बोर का इंच पे बोलते हैं कि भैया 5 इंच की बोर है ना तो उसमें से चल जाएगा. 1 HP 2 HP कितना किलो चाहिए, नहीं चाहिए. 5 इंच का बोर चाहिए, 10 इंच का बोर चाहिए. हम लोग क्यों चाहिए? तो सर फ्लडिंग करने में आसान होता है, खेत में पानी छोड़ना आसान होता है, टाइम नहीं लगता है. हम लोग कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है इसको कैसे समझें. तो हमने कहा कि क्यों ना कुछ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन किया जाए और सॉइल के मॉइस्चर कंटेंट्स को कंडीशंस करते हुए, और उस पर ये किया जाए कि हम पानी को नॉर्मल सिस्टम ना लेकर करके स्प्रिंकलर और फॉगिंग सिस्टम के साथ में जाएं, एंड उसको इंटरवेट किया. दूसरा एग्रोवोल्टिक को किया. तीसरा इसके साथ में कोल्ड स्टोरेज को जोड़ा.
क्योंकि एक छोटा सा फार्म है, मेरा 2 एकड़ का फार्म है, उसी 2 एकड़ के फार्म में क्यों ना एक साथ में एक छोटा सा 5 मेट्रिक टन का सोलर कोल्ड स्टोरेज लगा लिया जाए, जिसमें आज किसी ने प्याज तोड़ा है, किसी ने आज टमाटर लेके आ गया, किसी ने मिर्ची लेके आ गया, इन सबको वहाँ रखो, 10 दिन में आराम से बेचेंगे ना। आज बेचेंगे तो 10 रुपये का रेट है, कल हो सकता है 12 रुपये का रेट हो, कल वो 15 रुपये का हो। तो ये सारी चीज़ों को एक साथ लेकर के आए, एंड दिस कॉन्सेप्ट वी कॉल्ड इज कॉल्ड द प्रिसिशन फार्मिंग। और इन सब के साथ में डेटा ड्रिवन कॉन्सेप्ट को लेके आए, बिकॉज डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, किस जगह पे कितना इमिशन किस फील्ड से आ रहा है, कितना करना है और उसको कैसे रिडक्शन करना है, ये हम फार्मर्स तक पहुंचाना चाहते थे। एंड दैट्स वे दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपिंग इकोप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट हमारे साथ में आया। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली द फर्स्ट, आपको मैं पहले कुछ चीज़ें दिखा दूं। ये एक नॉर्मल सोलर कोल्ड स्टोरेज है, 5 मेट्रिक टन का, आराम से सोलर पे चलता है, 7-7.5 किलोवाट का सिस्टम के साथ लगा आता है। किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं चाहिए, खुले खेत में ले जाओ रख दो। पहली चीज़ गांव वालों ने मिलके किया, डेफिनेटली इसमें सब्सिडी और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उन पे अभी डिस्कशंस नहीं करूँगा। गांव वालों ने मिलके किया और एक गांव में अगर 20 किसान हैं, उन सब के लिए एक 5 मेट्रिक टन का फार्म पे लगा दिया और कहा कि ओके नाउ यू डू इट, यूज़ इट। सब लोगों ने मिल करके यूज़ किया। इतना भी नहीं, आपस में रेंटिंग भी शेयर करने लगे कि ओके मैं आज इसमें से 200 किलो ही रख रहा हूँ, तो 2 रुपये पर किलो का रेट से इसका स्टोरेज या 1 रुपये के रेट से वो स्टोरेज किया, क्योंकि उसकी वजह से उनका कॉन्सेप्ट जो था, यानी बेचने का जो तुरंत मार्केट तक पहुँचना है, वो भी खत्म किया। कुछ फोटोग्राफ्स और हैं, तो लेट मी फर्स्ट शो यू द फोटोग्राफ्स। यस, आप ये देख रहे हैं, बहुत सिंपल सा किया, लैंड की ड्यून यूजिबिलिटी चेंज कर दी। खेती का जो जमीन है उसको कहा खेती में ही रहने दो, और दोनों चीज़ों को, सोलर के पैनल्स को इतना हाइट तक लेके गए कि उसके नीचे इवन ट्रैक्टर चलता है। बहुत आसान। ये तो सैंपल है, ये हमने एक 40 किलोवाट का OUT के कैंपस में लगाया था। अभी प्रोफेसर सुदीप मित्रा इधर बैठे हैं, उनके साथ स्कूल ऑफ रूरल टेक्नोलॉजीज़ की मदद से ही हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट आसाम में भी कर रहे हैं। और व्हाट वी डिड इट कि हमने सोलर को उस फील्ड के ऊपर लगा दिया और गैप दिया। ये डिपेंड किया कि हम पहले क्रॉप किस तरीके का लगाना चाह रहे हैं, और उसी कॉन्सेप्ट के साथ में अपनी चीज़ों को चेंज किया। डिज़ाइन इस तरीके से किया कि हमारा जो शेडिंग का प्रोपोर्शन है, जितनी रिक्वायर्ड है, जितनी सनलाइट उस फसल को चाहिए उतना ही दे। और इससे क्या हुआ कि दोनों चीज़ें हो गई। एक, पानी की जो रिक्वायरमेंट, क्योंकि जनरली धूप, कभी आपने कहा ना कि धूप सबसे बड़ा परेशानी है उसके लिए, तो हमने कहा धूप को रोक देते हैं, धूप से पावर जनरेट कर लेते हैं, और जो कम बचा उसमें पानी का यूटिलाइजेशन भी है। और पूरे फार्म को हम लोगों ने फॉगिंग सिस्टम के साथ में कनेक्ट कर दिया। तो इंटायर फार्म पे जब मेरा खेत में पानी की ज़रूरत होती है, मेरा सिस्टम अपने आप ऑपरेट होता है। 8 घंटे के लिए ज़रूरत नहीं है अब पानी देने की, या 5 इंच का बोरवेल पे पानी देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ 12 मिनट के अंदर में पूरे फार्म के अंदर में जितनी मॉइस्ट उसको रिक्वायरमेंट हो मिल जाती है। नाउ दिस इज़ व्हाट, और ये जब हमने किया तो हमने 78% वाटर बचाया। हमारे लिए बहुत अच्छा था ये रिजल्ट। इस स्टडी को पूरा आगे किया प्रोफेसर सुदीप मित्रा, वंस अगेन उनकी टीम ने हमारे को बहुत हेल्प किया, और इन स्टडीज़ के बेस पे नाउ अभी जो है हमने, और इसका एक सबसे बड़ा, बिकॉज जब आप बातें हैं कि मैं ये क्यों कार्बन कॉन्सेप्ट पे आया, इन सारी चीज़ों के लिए हमने फार्मर्स को ये नहीं कहा कि ओके आप पैसा लगाएंगे, बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ है कि टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, पैसा कौन लगाएगा। तो हमने कहा ओके क्यों ना इसको हम लोग अपफ्रंट कार्बन को बेच दें, बिकॉज हम 3 चीज़ों को कर रहे हैं। 1, इसी फार्म से पावर का जनरेशन कर रहे हैं, इसी फार्म से हम कार्बन वेस्ट जितना भी जनरेशन हो रहा था या वाटर का रिजर्वेशन हो रहा था, वाटर का कंजम्पशन पैटर्न चेंज होने की वजह से कार्बन इमिशन के लिए जितना रिक्वायर्ड है, यानी पंपिंग के लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी या डीजल की रिक्वायरमेंट थी वो खत्म हो गई। इसका जो वेस्ट था उसको भी रीयूजेस किया, और जैसे पूरे प्रोसेस में सारी चीज़ों को हमने इस तरीके से कंबाइन किया कि इसका कार्बन क्रेडिट जितना हमारा इमिशंस हुआ उसको हम अपफ्रंट सेलिंग पे चले गए। And there is a bilateral agreement between the Indian government and the Japan government,
जिसके उस मैकेनिज्म के बेस पे हमने इसको अगले 10 साल में जितना कार्बन इमिशन रिडक्शन होगा उसको अपफ्रंट सेल कर दिया. So this is what exactly the mechanism we have developed. And we got like in the first licenses for this, और अगले एक साल तक में हम 50 मेगावाट यानी छोटे फार्मर्स के लिए 500 किलोवाट से लेकर करके मैक्सिमम 2 मेगावाट तक की कैपेसिटी का हम प्लांट उसके खेत पे लगाएंगे. किसी को उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, उस यानी उस फार्मर को कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं आती. हम पैसा लगाते हैं, हम अपना इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं और उसका कार्बन इमिशंस भी रिडक्शंस करते हैं. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोप्रोन्योर एंड दैट्स वे वी स्टार्टेड. एंड दिस इज़ इंटायर कॉन्सेप्ट वी कॉल इट द प्रिसिशन फार्मिंग कॉन्सेप्ट. एंड उड़ीसा से हमने स्टार्ट किया. उड़ीसा को पहले चुना, झारखंड, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे साथ में अभी हम उस पर काम कर रहे हैं. एंड दिस इंटायर कॉन्सेप्ट, और सबसे बड़ी चीज़ जैसे कहते हैं ना कि महिलाओं की भागीदारी, सो इस महिलाओं की भागीदारी को लगने के लिए हमने उनको इस फार्मिंग में जोड़ दिया, क्योंकि हमने देखा था कि खेती में सबसे ज़्यादा अगर कोई चेंजेस ला सकता है यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई चेंजेस ला सकता है तो वो महिलाओं की भागीदारी ही हो सकती है. और पानी बचाना एक सबसे बड़ा इसका रीज़न था इस पूरे प्रोग्राम को इनिशिएट करने के लिए. बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है बट आई विल जस्ट स्किप. बट इसमें 4 चीज़ें हैं. 1 मिनट है, ओके आई हैव. सो इस पूरे प्रोग्राम को सस्टेन करने के लिए हमने 4 चीज़ें की. पहली चीज़, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स का प्रोग्राम रखा, यानी गांव के जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनको पहले ट्रेन किया कि आप यहाँ के ट्रेनर्स बन जाओ. हमने उनको बुलाया, उनको ट्रेन किया, गाइड किया कि आपको नाउ ये चीज़ें हैं. उसमें इवन जैसे हम कह रहे हैं ना कि फूड पैटर्न्स को चेंज करने के लिए या क्रॉप पैटर्न्स को चेंज करने के लिए हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इसमें आए. उन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट में किस सेक्टर में कितना, किस फ्रूट के लिए कम बेसिकली आप कह सकते हैं कि धूप की रिक्वायरमेंट है या स्टडी किया, उस सारी रिसर्च को किया. कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के लिए मोस्ट किया, फोस्टर इन सेंस ऑफ ओनरशिप एंड एम्पावरमेंट. हमने कहा कि नहीं, ये एक किसान को नहीं दूंगा, अगर आप SHGs हो या FPO हो तो चलो आओ, लेट्स कम टुगेदर. उनके बिना हम नहीं करेंगे. एंड दिस प्रोग्राम के लिए हमने कहा कि अच्छा मैं तो फार्मर हूँ, मेरे तो घर में 10 एकड़ की ज़मीन है यार, यहाँ लगा दो. बोले नहीं, SHGs या FPO हो, मिल करके काम करने के लिए तैयार हो तो प्लीज़ आ जाओ. उनके साथ काम करना शुरू किया. इंटीग्रेशन विथ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज, मार्केट को समझा, इंटरनेशनल मार्केट को समझा और क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चरल प्रोग्राम विच इज़ नीड ऑफ द आवर, उनको अंडरस्टैंड करते हुए एक साथ जोड़ा. सो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस लाइक IFAD एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में लेके आए, UN की कुछ बॉडीज़ को साथ में लेके आए. एंड दैट्स वे वी स्टार्टेड एंड इंश्योर किया कि जो भी इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम बोल रहे हैं कि वाटर 78% कम हो, वो ज़रूर हो. उस फार्म में से अगर इतना किलोवाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होना चाहिए ताकि हम उसको सप्लाई कर सकें डिपार्टमेंट को, वो कर सकें. उसी तरीके से जो उनके फार्म के प्रोड्यूसेस हैं, अब सबसे बड़ा होता है खेती तो कर लिया, सामान मार्केट में नहीं बिक रहा है, तो हमने कहा नहीं, आप हमारे को सामान भी दे दो. आपने मिर्ची किया, कोई बात नहीं, हमें दे दो, हम मार्केट में बेचेंगे. सो दैट्स वे ऑल द सस्टेनेबिलिटीज का एक साथ में को सिस्टम्स लेके आए एंड इस पूरे प्रोग्राम को रन किया. So this is what the initiative is called, the agrovoltaic and the precision farming. So as a founder, me and along with my team who are here, we have started this concept और इसको अब पूरे इंडिया में लेकर के चल रहे हैं. That's all. धन्यवाद for this. Thank you. Excellent, excellent. Thank you very much. Congratulations. Very good initiative. Because of lack of time, we will not take the questions now. We'll take the questions together. We have 2 more presentations to go through. And I would now like to invite Mr. Ashish Sharma to tell us about his initiative Jal Abhilekh. Over to Ashish. Thank you. Thank you for inviting me to this conference. And I would like to, as we usually discuss, that there are a lot of problems are there, water crisis, everything, lot of problems are there. But luckily this conference I see that lot of solutions are there. So it is one of the congratulations for the organizer that they are coming with a solution. And I am also in line with that.
So just not showing only the problem, but what are the solutions are also I will discuss, and I will be very specific to a very specific problem. Like water bodies, already discussed that it is very important for village level, and being a remote sensing person or related to computer science, we basically look things from sky, how the things looks from the sky, what is the bird eye, and how the problem is, what is the depth of the problem. Okay, so here I basically try to find out four answers to 4 questions. First is what is the how water bodies are signifies to us. What is the importance of the water bodies? And from last 2 days we are seeing that water bodies are very important for agriculture, for living, for the water supply, everything. Water bodies are very important. And then what is the condition? What is the condition of present condition of water or water bodies in India? Not only in India, globally. What is the scope of? Are we in India are facing this problem, or the whole globe is facing that problem? So I will give you some glimpses of that. And then what is the solution? What are the steps we need to take? And when we take some step of water conservation, what is the impact of that step on the ground? So these 4 things we will discuss. So as you all know, the water is very important to us, and from straight away from historical, all our civilization flourish beside the water. Where the rivers are there, where the water bodies are there, all our civilization flourish on that. And even today we are dependent so much on water. Okay, so but the difference is that as we are going, as we are modernizing, we are seeing that the thirst for water is increasing. The thirst of water is increasing because our population is growing exponentially. Everywhere the population is growing exponentially. We are utilizing all the resources exponentially. So the thirst of the water is increasing. So how to ये thirst कैसे कम की जाए? How we reduce this thirst? So first we want to understand what is the scope, what is the depth of the problem. So whether we are facing already this problem or the whole world is facing this problem. So there is a very good paper in Nature which show you that whole world, the water bodies, it is a very good study. Near about 350,000 water bodies all over the world are analyzed in that paper. And what they find, that you can see that the top areas where blue portions are there, these are the areas where the water bodies are increasing. Rest all the water bodies, all the globe, it's decreasing. You are seeing that there is a light blue color. Light blue color signifies that the area of the water body is decreasing over the time. It is decreasing. And also seasonality, because we know that in India we have only 4 seasons where we have rainfall and we get that water, and other 8 seasons we do not, we have dry, humid temperature. So seasonality, we are also showing that with the climate change and with the increase in temperature, we are losing areas of water bodies, and we are also seasonality, sometimes the water body is able to revive itself, but most of the time it loses water. You can see, it is one of the example how our water, you can see that this map show you 1985, it is one of the dam in Morocco, which shows from 1985 to 2020, how the surface area of the dam is changing, how the area of the dam, it is shrinking. And you can also see that graph, the average area of the dam is decreasing. The similar is this. The water bodies are all over the world is decreasing because of the climate change, because of the silting in water bodies, because excessive utilization of waters. So all these. So is this reason is only in the world? It is also the same phenomena we are seeing in India also. It is a total dam
which supply water to Nagpur. All the water supply, all the irrigation is dependent on this dam. And what we see in 2019, it is in minimum stage. It is a minimum area of dam water is filled. So we are having the water crisis in 2019 where we have an alternate supply. So this type of analysis or this type of bird view eye give you an exact picture, what is the condition of the water, what is the area of the, here we are only talking about the quantity of the water, not the quality, we are only seeing the quantity of water. This is one of the paper which shows in Chennai, in 2015, there are number of water bodies are there, but 2020, more than 50% of the water bodies are gone. And you see that all the water bodies are interconnected. These streams, all major water bodies are connected with a small water bodies. If we lose small water bodies, then the larger water body will also lose their water because all the system is interconnected. Okay? So the question arises, are we coming to zero water day? This is a very popular scenario where most of the people are saying that by 2030 or onward, we may see this situation where we do not get water from the tap. Zero water day. Okay? So the depth of the problem is very severe. Now we have to act now. So what are the reasons? A lot of reasons already discussed, but I give you some of that climate change, lot of consumption, siltation, encroachment, dry weather, all these are some of the reasons. So what are the steps? Now we are coming toward the solution. What is the solution for that? There are a lot of solutions already discussed in our panel. Yes. All the solutions are already provided. So I just give, being a remote sensing person, I just give you, we work on 3 major points. First is identification, second is rejuvenation, and third is monitoring and awareness. So with the case study I just give you, we take up this case study in Pondicherry. Once upon, in 1980s around, Pondicherry is having 800 water bodies. It is only 47 square kilometer area, a small area. And they have 800 water bodies. In 2016, they have only 80 water bodies. Only 80 water bodies are there. So they have a lot of problem there. So we have taken up this problem. So first we do geotagging and identification. Some person already talked about that. Why not? Who will take the responsibility of water? The responsibility of water given to the local or the government only when you identify that they exist there. Now most of the water bodies are already encroached. They are not in their place. If they are not in place, how you rejuvenate them? So we identify water bodies with the help of remote sensing and with the local community. We have developed some application known as a Jal Abhilekhh, where the people coordination with where people participate in clipping the photographs, and we verified those photographs, and with the satellite images we are able to identify where are the water bodies are there. Whether there is a water or not, it is a secondary matter, but first we identify where initially, historically, there are water bodies there. So we give unique identification number, and first time in India, unique identification number is given to each and every water body there. So all the 700 water bodies we have identified and give the unique identification number, and you can see all water bodies are interconnected. There are encroachment we identify, lot of encroachment is there, and with the help of community, we are able to rejuvenate that water bodies. So we have developed an application because lot of policies are there. Policies बहुत है अपनी जगह पे, लेकिन आप एक common person के लिए देखिए how they can contribute. They require some platform. They require something to share with the government, to share with each other. So we have created that platform which is known as the Jal Abhilekhh, where they can clip the photograph of their area, and that photograph is straight away uploaded on the server. It
with the help of remote sensor, with the help of machine learning, it created a boundary of that and identify what is the area of this water body, and then it, with every 16 days, it keep an eye on that water body, whether the water is there or whether the water is not there. So here you can see, after that, you can see that this is image which shows that the green portion are showing you the water is converted into land. So there is no water is there, green. Blue portion is showing that land is converted into water. In 2008, you have two major lakes are there, Osturi and Bahur Lake in Pondicherry. This is the situation, but in 2017, you see Bahur is totally vanished. No water is there in Bahur. So people start cultivation there. So this is how we are losing our water bodies. So we have implemented that tool. We go to the field, we discuss with the farmer, they participated in that, and out of that we are able to rejuvenate 300 water bodies with their effort. So now they have 300 plus water bodies in Pondicherry. And this word is so appreciated by their local then Lieutenant Governor Kiran Bedi, and he presented that work before the President of India. Water-rich geotagging, and this is get lot of public participation and media coverage. So there the political will is very there. The political will is there. So that's why we are able to do that. And because the time is very limited, so I just put the documentary, a very good documentary is created on this work. If anybody is interested in that documentary, you can take the QR code and you straight away go to that video documentary. It is 21-minute documentary and it is in 8 Indian languages. So we have created a documentary, all the documentation, how we get to the field, how we collected the data, how we do that, the things, how the result is there. They have their drone survey also. So all the results are there in that beautiful documentary. And apart from that, NIRI is working on different, I come from the CSI NIRI, which is working in the field of environment. And we have developed a lot of technology related to water distribution, water pipe selection. So a lot of technologies are there. If anybody is interested, then we have a communication with them and we will discuss. All these technologies are open source. So we will discuss, we will share that technologies with you, no problem. Any question? Yeah, we'll take the questions later, I'm sorry. Thank you very much. I'm sure there will be a lot of questions for Ashish. Unfortunately, we don't have time for the questions, so kindly save your questions for the lunch hour. We will quickly move to Mr. Neeraj Wankhede. Mr. Neeraj Wankhede has been given a title of Jal Prahari, which translates to something like water guard. We will understand from him what exactly it means. Neeraj ji, over to you. Please tell us about Jal Prahari. सर्वप्रथम तो माँ भारती, माँ सरस्वती और माँ छत्तीसगढ़ महतारी को मेरा प्रणाम, मंचासीन आप सभी को मेरा प्रणाम, और यहाँ आए हुए जितने भी अतिथि हैं आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार अगर आप सभी मेरे साथ जय जल जगार बोल दें तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो जल जगार का कार्यक्रम है ये नवागांव थुआ से चालू हुआ था। तो एक बार मेरे साथ आप सभी बोले जय जल जगार जी, थैंक यू। तो नवागांव थुआ से यह कार्यक्रम चालू हुआ था और आज पूरे ज़िले में, पूरे राज्य में ये कार्यक्रम बहुत बड़ा इवेंट का, और मेरा सौभाग्य मुझे कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये मुझे तीसरी बार चांस मिला है इतना बड़ा मंच बोलने के लिए, और मैं कभी इतने बड़े मंच से बात नहीं किया हूँ। हाँ, मैं गांव में जाके, मैं पिछले 13 वर्षों से जल संरक्षण पे कार्य कर रहा हूँ। मैं गांव में जाके बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ, मैं इन सब बच्चों से बातें करता हूँ, गांव के लोगों से बातें करता हूँ, और जल संरक्षण को लेके हम लोग कार्य करते हैं। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बोर रिचार्ज सिस्टम, वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हम कैसे बनाएं, इस सब के बारे में हम बताते हैं। हम ये भी बताते हैं कि हमारा उद्देश्य जल
जमीन के अंदर जाए, लेकिन यह उद्देश्य नहीं है कि गंदा पानी जमीन के अंदर जाए। तो हम कितना ज़्यादा फिल्टर कर सकते हैं और क्या हम हमारी, हो सकता है मुझे नहीं मालूम तो वो गांव वालों को मालूम है, तो उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम ये सब चीज़ों को देख के कार्य करते हैं। 2009 से हमारी जो हम लोग गांव में कार्य कर रहे थे जल संरक्षण को लेके, फिर धीरे धीरे समझ में आया हमें कि जल संरक्षण कैसे करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एरिया है आज भी वहाँ पे 1100 फीट पे भी पानी लगेगा कि नहीं लगेगा बोर में, ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि पांडुरना हमारा थोड़ा ड्राई जोन में आ जाता है और हमारे यहाँ संतरे की फसल सबसे ज़्यादा होती है, तो वहाँ पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो हम 2009 में मैं पहुँचा पांडुरना पहुँचने के बाद देखा कि वहाँ के लोगों की जो संतरे के पेड़ है वो सूखने लगे हैं, तो क्या करना चाहिए। हमने अवेयरनेस लाने का प्रोग्राम किया, फिर धीरे धीरे हमने टीम के साथ हमने सोचा कि नई एक संस्था, बोलते हैं ना कि जब कोई बच्चा पैदा होता है या होता है तो उसका नाम रखना चाहिए, तो फिर हमने संस्था का नाम रखा श्रद्धा सबूरी समाज सेवी संस्था, और वो संस्था के थ्रू हम लोगों ने काम चालू किया धीरे धीरे। फिर हमें समझ में आया कि अवेयरनेस से कुछ नहीं होगा, लोग एक जागरूक, तो भाई हम क्या चीज़ बताएं कि जो कार्य कर सके। तो फिर हमने पानी फाउंडेशन की एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने जाके उस चीज़ को सीखा 4 दिन, लेकिन दिक्कत हमारे साथ थी कि हम एमपी वाले थे और वो महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनको ही ट्रेनिंग दिया करते थे। तो हम लोगों ने महाराष्ट्र के एक गांव के नाम से हमने वहाँ रजिस्ट्रेशन किया और हम लोग 4 लोग वहाँ जाके उस काम को सीखा हमने। फिर आके हमने हमारे गांव में स्टार्ट किया काम। आज हमारे गांव में 150-200 से ज़्यादा वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बोर रिचार्ज सिस्टम, हमने नदियों की सफाई की, जो हम पिछले 5 वर्षों से माँ जाम नदी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सीवरेज का पानी इसमें ना जाए। हमने सिल्ट, वहाँ से जो कचरा है वो निकाला, हमने 2 स्टॉप डैम सफाई। ऐसे करते करते हम लोग धीरे धीरे जिले में आए। जिले से हम पूरे छिंदवाड़ा जिले, पांडुरना जिले को कवर करते, बैतूल करते हुए हम लोग धीरे धीरे आज हम लोग छत्तीसगढ़ में पहुँचे और छत्तीसगढ़ में आज हम लोग इस जल जगार का हिस्सा बनने का हमको सौभाग्य मिला। और कभी ऐसा नहीं लगा था कि इतना बड़ा जल जगार होगा। हमने छोटा सा चालू किए थे और आज यहाँ पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा सॉरी, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि इस जल जगार कार्यक्रम में जितनी अभी देखिए, अभी गर्मी तो है, लेकिन इससे ज़्यादा गर्मी उस समय गर्मी में होती थी। जब हमने जल जगार का कार्यक्रम माननीय कलेक्टर मैडम ने हमें बुलाया, हमने चालू किया, तो वो जितने भी अधिकारी थे, वे फॉरेस्ट वाले हों, छोटे बड़े अधिकारी, या फिर जिला पंचायत के अधिकारी हों, जैसे कलेक्टर मैडम ने तो उनका ही पूरा कार्यक्रम है ये, जिला सीओ हैं रोमा मैम हैं, डिप्टी कलेक्टर थी प्रीति मैम, एपीओ थे धर्म भैया, उसके बाद राकेश जोशी सर, और जो इनके पूरे टीम है, इन सब की मेहनत के वजह से आज यहाँ तक के हम लोग पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thank you very much. Thank you very much, Neeraj ji. So with this, we come to the end of this session. While Rajiv summarizes, there is one thing very poignant to remember कि 70% फ्रेश वाटर की ज़रूरत पड़ती है खेती बाड़ी के लिए। 70% फ्रेश वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, जिसका मतलब है हम सिर्फ पानी पीते नहीं हैं, शायद हम पानी खाते भी हैं। सो पानी का महत्व कितना है वो शायद ये सेशन बहुत कम है ऐसा डिस्कशन करने के लिए। और आई रियली होप कि ये जो हमारे इतने डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स थे, इनसे हम लोगों ने कुछ आगे बढ़ा के हम कुछ आगे लेके जा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो इसको अभी हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं, एज टाइम इज़ देयर। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है आज, जैसे हम लोगों ने कहा कि हमारी बात को आपने सुना, क्यों ना हम आपकी बात को भी सुने। तो पोस्ट लंच हमारा यही प्रोग्राम है। तो जैसे कहते हैं ना, चाय पे चर्चा है, तो चाय तो आप लोग सबको आज मिल गई, तो अब क्यों ना पानी पे चर्चा करें। सो द नेक्स्ट सेशन इज़ अबाउट द कन्वर्सेशन ऑन वाटर। हम सब लोग, चाहे वो आप टेक्नोक्रेट्स हैं, चाहे हमारे साथ पॉलिसी के लोग हैं, चाहे हमारे डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, चाहे स्कूल के बच्चे भी हैं, आप सब
हमारे साथ यहाँ पे एक राउंड टेबल डिस्कशंस करेंगे। ओके, बहुत अच्छा सा है। इस पूरे प्रोग्राम को चेयर करने के लिए डेफिनेटली हम सब के गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, तो आई विल से कि सर अमिताभ कुंडू सर की प्लीज़ अगर आप इसको प्रोग्राम को चेयर कर सकें। को चेयर आपको आपसे अच्छा कोई मुझे मिलेगा नहीं, तो इसलिए आई विल से पार्था बासु कहोगे। नेशनल पैनलिस्ट के लिए हमारे साथ में सारा डिस्कशंस करने के लिए हमारी टीम में से हरीश होंगे। हरीश शर्मा, कैन यू कम फॉरवर्ड हरीश? सो अच्छा, अपनी जगह पे भी खड़े होकर करके। सो हरीश होंगे। इंटरनेशनल पैनलिस्ट के साथ डिस्कशंस करने के लिए हमारे साथ में प्रवीण भारद्वाज सर होंगे, और इस पूरे डिस्कशन का आउटकम जो हमें बना कर करके आज शाम को इसका डिक्लेरेशन हम पास करेंगे कि क्यों ना हम यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में आए, आपस में डिस्कशंस किया तो कुछ आउटकम भी तो दे करके जाए ना, और आउटकम ले के जाएँ, दे के ना जाएँ। क्यों ना हम अपने अपने एरियाज़ में हम सारे के एक्सपर्टीज़ हैं, क्यों ना इसको इस डिक्लेरेशंस को आगे ले कर करके जाएँ। इसी मोटो के साथ हम ब्रेक करेंगे। नाउ जो सेशन होगा वो स्टार्ट होगा, या जो डिस्कशन स्टार्ट होगा एट 2:30। लंच ब्रेक अभी हम करेंगे। लंच ब्रेक के बाद वी विल स्टार्ट एट 2:30। 2 बजे 2:30 से 4 बजे तक अलग अलग ग्रुप्स में हम एक साथ राउंड टेबल में बैठेंगे। तब तक मैं आपकी सीटिंग अरेंजमेंट्स भी चेंज कर दूंगा। सब लोग मिल करके उस पर डिस्कशंस करेंगे, 1-to-1 कन्वर्सेशन करेंगे, आपकी बात को भी सुनेंगे, कुछ डिस्कशंस का आउटकम निकालेंगे। फिर फाइनली सेम हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को यहाँ पे भी हैंड ओवर करेंगे। एंड शाम में जब हमारे साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री जी और आई थिंक गवर्नर सर दोनों आ रहे हैं, तो उस डिक्लेरेशंस को हम उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्यों ना इसको एक छत्तीसगढ़ का या छत्तीसगढ़ द्वारा एक इनिशिएटिव्स पूरे ग्लोबल लेवल तक लेके जाने के इनिशिएटिव्स में प्रस्ताव को रखते हैं। तो पानी पे चर्चा, चाय पे चर्चा तो हो गई, ब्रेक अब लंच कर लेते हैं और लंच के बाद होगा। बट बिफोर दैट सर, आई वुड रिक्वेस्ट टू यू कि हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं सर उनको फैसिलिटेट करें एंड वन बाय वन। सो लेट मी स्टार्ट विथ आवर मॉडरेटर सर, प्लीज if you can facilitate our this. So let's start with our moderator, Dr. Partha Boshu. Mr. Ganesh. Mr. Ashish Sharma. Mr. Neeraj Wankhede. Mr. Rajiv Ranjan Guru. And to Mr. Vishwanath S. हम सभी ने देखा कि पानी के विभिन्न आयामों पर हमने चर्चा की, और उसमें सबसे ज़्यादा अहम है कि जो लोकल पार्टिसिपेशन, चाहे जो वो विश्वनाथ जी का जो उन्होंने डिस्कस किया बेंगलोर में, महिलाओं को इन्वॉल्व करके, लोकल कम्युनिटी ऑफ वेल डिगर्स उनको इन्वॉल्व करके किस तरीके से हम वाटर मैनेज कर रहे हैं। इस डिस्कशन से पहले मैं आपको एक वाटर मैनेजमेंट पे 2-3 साल पहले नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी, जिसमें उन्होंने कहा था हिंदुस्तान के लगभग 21 शहर, 21 सिटीज़ के हिंदुस्तान के 21 शहर नीति आयोग के अनुसार कि वहाँ पर वाटर स्ट्रेस सिचुएशन हो जाएगी और दे विल बी आउट ऑफ वाटर, इस तरह की रिपोर्ट आई थी। लेकिन और ये भी था कि वो 2023, 24, 25 तक ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है, नहीं होना भी चाहिए। लेकिन वाटर एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें चाहे आप स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, आप स्मार्ट सिटीज़ मिशन की बात करें, या किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करें, वाटर एक अहम हिस्सा इन सभी मिशंस का है। हम टॉयलेट तो बना सकते हैं, लेकिन अगर वो वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम कैसे उस स्वच्छ भारत मिशन को सस्टेन करेंगे। स्मार्ट सिटीज़ बना देंगे, इंडस्ट्रीज़ लगा देंगे, बड़े बड़े शहर बना देंगे, लेकिन अगर वहाँ पर पानी की उपलब्धता को हम सुनिश्चित नहीं कर सकते तो वो स्मार्ट सिटीज़ दे विल बी डम सिटीज़। तो
कम्युनिटी पार्टिसिपेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है। और हमारे यहाँ पे जितनी भी सभ्यताएं हमारे मानव इतिहास में हुई वो इवॉल्व भी हुई पानी के इर्द गिर्द, और ख़त्म भी इसलिए हुई क्योंकि वो वाटर को मैनेज नहीं कर पाए। चाहे वो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की बात करें या मेसोपोटामिया या इजिप्ट में जो सभ्यताएं रहीं आज से हज़ारों साल पहले, वो सारे वाटर के इर्द गिर्द थी। हमारे जितने भी बड़े शहर बने, इंडिया का जो, अगर हम जिसको गोल्डन पीरियड कहते हैं, तो वो सारा जो मरीन ट्रेड था हमारा उस पर निर्भर था। तो वाटर हमारे लिए सिर्फ सस्टेन करने के लिए ही नहीं, हमारे ट्रेड के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें जैसे अभी इस सेशन के पहले चर्चा हो रही थी कि अगर हम कम्युनिटी को एंगेज करते हैं, और बहुत अच्छी बात लगी मुझे उन्होंने जब ये बात की कि वाटर सिक्योरिटी को हम लाइवलीहुड से अगर हम जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक हम उसको सस्टेन करना हमारे लिए मुश्किल होगा। और वो हो रहा है हमारे देश में विभिन्न हिस्सों में। और मुझे लगता है जो जल जागर जो अभियान छत्तीसगढ़ के धमतरी डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया, जगार का मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था जब मैं आया, लेकिन मुझे बाद में पता चला इसका मतलब है जागरण, जो यानी कि अवेयरनेस से लिंक्ड है। तो अगर कम्युनिटी हमारी अवेयर है, उनको पता है कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, शायद इसीलिए हमारे कई सारे धर्मों में वाटर को हमेशा पूजा गया है। हमारे जो जितने भी मंदिर आप देखेंगे वो वाटर बॉडीज के निकट हैं। अब मैं चाहूंगा कि प्रवीण जी बोलना चाहते हैं। प्रवीण जी, just a request from the chair. Sir, we have few international participants out here. So I was just requesting Chairman Sir ki if you can allow them, because they have traveled so far, so we can call Mr. Hans and Marino to join over here. So as per your discretion, sir. So I request Mr. Hans and Marino to come here. Can I also request Mr. Jayanta to join us on the panel, our esteemed friend from Sri Lanka? तो मैं अपनी बात Sir, one more request. We need a local representative from Chhattisgarh. So if someone from Chhattisgarh can join to give Chhattisgarh, please आए। इसमें मेरे ख्याल से नहीं। सर, अच्छा वहाँ से आएंगे, नहीं तो आई थिंक सर प्लीज इफ यू कैन आप आ जाएं तो, बिकॉज नहीं यहाँ ओके ओके ओके। आप भी आना चाह रहे हैं तो शायद विशाल एक कुर्सी और लगवानी पड़ेगी। आई थिंक नाउ वी हैव सम इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स and we have few people who are chairing it, coordinating, and then local representation also. So it makes the house complete. Now, Abhishek, please start with your conversation. So we will take a few views from the international one also, and then we can open it. तो हम बात कर रहे थे कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है और उस पर किस तरह से हमारी सभ्यताएं, हमारे शहर उसकी बुनियाद पर खड़े होते हैं। मैं बात कर रहा था कि हिंदुस्तान का जो ट्रेड स्टार्ट हुआ, जो मरीन ट्रेड था, हमारे यहाँ से स्पाइसेस जाते थे दूसरे कॉन्टिनेंट्स में, और उसके उस दौरान जब हम लीड कर रहे थे, जिसको हमारा गोल्डन पीरियड कहा जाता है, हमारा ट्रेड या जीडीपी जो हमारी हुआ करती थी वो 1/3 ऑफ द ग्लोबल जीडीपी थी। आज की तारीख में ये कल्पना करना कि अगर हम 1/3 ऑफ जीडीपी को कंट्रोल कर सकें तो वाकई में एक अचीवमेंट होगा। तो वाटर हमारे पूरा इवोल्यूशन का एक अहम हिस्सा रहा और ज़रूरत भी रही। कल आपने सुना कि टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट में उन्होंने बात की कि किस तरीके से फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड वहाँ पर बच्चों को वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड उनके करिकुलम में इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं ताकि बचपन से ही वो इनकलकेट किया जा सके हमारी शिक्षा पद्धति के माध्यम से। तो
मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट में बहुत सारे सेशंस में इस पे बारे में बात हुई। तो हमारे कुछ पॉइंट्स थे, जैसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट था कम्युनिटी लेड अगर हम बात कर रहे हैं तो टेक्निकल एक्सपर्टाइज हमने बहुत सारे IITs के प्रोफेसर्स को सुना कि किस तरीके से वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। अलग अलग टेक्निकल इंस्टीट्यूट नीरी से बात हुई आज। तो हमारा जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है और जो हमारा ट्रेडिशनल विजडम है उसको हम किस तरीके से जोड़कर हमारे जो पानी से रिलेटेड हमारी समस्याएं हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। और हर जगह, जैसे कल एक हमारे स्पीकर ने बात भी की कि हर जगह टेक्नोलॉजी को ज़बरदस्ती उसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत भी नहीं है कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर सल्यूशन सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखें। तो हमारा जो लोकल विजडम है, शहरों में, गांवों में, ट्राइबल एरियाज़ में, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो वहाँ से हमें उन सॉल्यूशंस को देखें और उसको सस्टेनेबल बनाएं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि GHG एमिशंस बढ़ रहा है, हम एनर्जी यूज़ करते हैं STPs में, बट देयर आर, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हमने अर्बन डायलॉग्स किया था, तो वहाँ पर वहाँ प्रोफेसर्स ने बताया कि किस तरीके से हमें STPs के अलावा भी देयर आर सॉल्यूशंस जो हम ट्रेडिशनली यूज़ करते रहे हैं, उससे भी हम अपने नदियों को साफ रख सकते हैं। और वहाँ पर एक प्रोफेसर हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मिश्रा, जो संकट मोचन मंदिर के महंत भी हैं और BHU में सिविल इंजीनियरिंग IIT BHU में पढ़ाते भी हैं। तो उन्होंने अपनी खुद की एक लैब भी वहाँ पे डेवलप कर रखी है तुलसी घाट पर। अगर आप लोग का बनारस जाना हो वो उस लैब में आप ज़रूर जाएं कि वो दैट इज़ ए वेरी लोकल इनिशिएटिव, दैट इज़ ए, आप कह सकते हैं उनका संस्थान का इनिशिएटिव है, बट दैट इज़, आई विल ऑल्सो से दैट इट इज़ ए इंडिविजुअल इनिशिएटिव ऑफ हिज, दैट वहाँ पर वो रेगुलर जो गंगा में जो गंदा पानी जा रहा है उसकी वजह से उसकी वाटर क्वालिटी पे क्या असर पड़ा है वो उस पर काम कर रहे हैं लगातार पिछले लगभग 25-30 सालों से। उन्होंने जब क्लीन गंगा मिशन स्टार्ट हुआ था राजीव गांधी के समय पे, उसके बाद फिर लगातार दूसरी सरकारों ने अलग अलग नाम से मिशन स्टार्ट किए, बट लेकिन गंगा की सिर्फ सफाई, उसको एक आप विजुअल आप देखना चाहते हैं कि गंगा साफ है, कि ये वाटर क्वालिटी भी उसकी कैसी है, उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। और वो सिर्फ मैं एक और सिर्फ एग्जांपल दूंगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी की हमने बात काफ़ी की, कम्युनिटी की बात की, तो IIT कानपुर ने नमामि गंगे का प्रोजेक्ट वहाँ पे लिया गया था। तो वहाँ पे जो प्रोफेसर थे प्रोफेसर विनोद तारे, ही वॉज हेडिंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑफ नमामि गंगे। तो उन्होंने एक कम्युनिटी के लिए भी एक गाइडलाइंस बनाई थी कि कम्युनिटी का इंटरेक्शन कैसे होना चाहिए अपनी वाटर बॉडीज़ के साथ। तो वो इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं जिसमें हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस और लोकल विजडम दोनों को मिलाकर हम अपनी वाटर बॉडीज़ को कैसे बचा सकते हैं, उनको कैसे सस्टेनेबल रख सकते हैं, इस पर हम बात कर सकते हैं। डेफिनेटली वाटर रिलेटेड जो अवेयरनेस है, जिसको हम जल साक्षरता भी कह रहे हैं, वाटर यूनिवर्सिटी की बात भी हो रही है, लेकिन उसके जो इमीडिएट सॉल्यूशंस हैं कि हम अपने एग्जिस्टिंग करिकुलम में जो हमारे बच्चे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनके करिकुलम में हम वाटर कंजर्वेशन को किस तरीके से उनको शिक्षा के माध्यम से उनको पढ़ा सकते हैं और उनको अवेयर कर सकते हैं। आई थिंक जल जगार का मकसद भी यही है। इसके आगे मैं चेयर ऑफ द सेशन डॉक्टर कुंडू से निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस पर अपने विचार रखें और हमें आगे सेशन के लिए मार्गदर्शन दें। Colleagues and friends, दोस्तों, there's a Peter principle that larger the number of listeners in a group, the intensity of listening goes down. एक कहावत है अंग्रेजी में कि जब सुनने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो तो प्रति व्यक्ति सुनने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए शायद राजीव जी ने हमने तय किया कि छोटे छोटे ग्रुप में बांटेंगे तो शायद डिस्कशन में कुछ गहराई होगी। लेकिन जब मैंने जज्बा देखा पार्टिसिपेंट्स में, जो एक्सपर्टीज़ देखी, जो उनके अंदर
एक मुहिम है, तो उसको देखते मुझे लगा कि नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हमने सोचा कि हम जॉइंटली करते हैं, किसी को हम मिस नहीं करना चाहते, इसलिए अरेंजमेंट में हमने थोड़ी सी बदलाव किया है। और पीटर प्रिंसिपल ये भी कहता है कि इफ देयर इज ए एवरेज एज गोज डाउन इन द ग्रुप, अगेन इट इम्प्रूव्स द कैपेसिटी ऑफ लिसनिंग। मुझे खुशी है कि एवरेज एज ऑफ द ग्रुप सडनली हैज़ गॉन डाउन एंड दैट सर्टनली इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिस्कशन। हमारे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 30 मिनट पहले अलॉटेड था, लेकिन हम शायद अपनी सहमति से ऑर्गेनाइजर से बात करके या यूनिलैटरल डिक्लेरेशन करके 10 मिनट तो आगे बढ़ा ही सकते हैं। मुद्दा हमारे पास यह है जिस प्रोग्राम के तहत कि 4 हमारे मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स ऑल वर्किंग फॉर द पीपल, तो पीपल आर सर्टनली द की फैक्टर हर एक चीज़ में। पहला स्टेक होल्डर है पॉलिसी मेकर्स एंड रूलर्स हु गिव अस द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कि जल जीवन मिशन कैसे होगा, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे इंक्लूसिविटी बढ़ेगी। एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है और उनके पास एक नैरेटिव भी है। अब होता यह है, जब सरकारी मिशन से एक नैरेटिव आता है, जैसे जल जीवन मिशन से एक नैरेटिव आया, और उस नैरेटिव के अनुसार अगर डेटा न मिले तो मुश्किल हो जाता है। मैं सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूं जो नेशनल सैंपल सर्वे से आता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से आता है। उसमें हमारे पास आंकड़े हैं कि कितने प्रतिशत गांव के लोगों को पानी मिल गया है। ये आंकड़े जो सरकारी संस्थाओं से मिल रहे हैं, जो एस्टैब्लिश्ड हैं, जो पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं, उससे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है वो आंकड़े जो मिनिस्ट्री, सरकार अपने पोर्टल पे दे रही है, अपने ही लोगों द्वारा इकट्ठा करके। जब अपने ही लोग अपने प्रोग्राम के बारे में लिखते हैं तो निश्चित रूप से उसमें थोड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाता है। तो हमने देखा, जल जीवन मिशन पर चर्चा हुई दिल्ली में कि जो नेशनल सैंपल सर्वे से, एनएफएचएस से जो आंकड़े निकल के आए वो मिनिस्ट्री के पोर्टल के आंकड़ों से काफ़ी फर्क थे। जबकि एनएफएचएस कहता है, एनएसएस कहता है 50, 52, 56%, लेकिन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दोनों डेटा में है, लेकिन वो थोड़ा मुख्तलिफ है। मुझे लगता है इसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी मेकर्स एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, एक आर्टिकल हमने लिखा था, नैरेटिव इन सर्च ऑफ डेटा, कि अगर सरकार की एक विजन है और परिप्रेक्ष्य अगर है, उसके अनुसार अगर डेटा मैच नहीं कर रहा है तो गलती डेटा जनरेशन एजेंसी की नहीं है। हो सकता है प्रोग्राम में कहीं कोई डिफिसिट रह रहा है, पहुंच उसकी कम हो रही है। तो इसीलिए इस मुद्दे को हम डिसमिस नहीं करना चाहते। हमें देखना पड़ेगा सीरियसली कि प्रोग्राम्स के तहत जो डेटा आ रहा है, जो लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो जो आंकड़े हमें दे रहे हैं, वो नेशनल सैंपल सर्वे, एनएफएचएस, वो भी सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन वो एस्टैब्लिश्ड हैं, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। उसमें फ़र्क को हमें निभाना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में परेशानी हो सकती है। दूसरा स्टेक होल्डर है टेक्नोक्रेट्स। अभिजीत ने बहुत अच्छी बात बताई कि टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है सारा लेबोरेटरी से आए। मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ, जितने टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर हुई है वो लैब से कम और फील्ड से ज़्यादा आई है। कि हमने इस जिले में इसका प्रयोग किया और हमने देखा कि इसे काम करता है। ये टेक्नोलॉजी जो लैब से निकल के आती है, तो वो जो है प्रैक्टिकल तब तक नहीं होता जब आप दिखा ना दें कि देखिए ये 25,000 लोगों ने इसको स्वीकार किया। तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी कि टेक्नोलॉजी पर डिस्कशन अब तक हुई है पीपल ओरिएंटेड, वो एक टेक्नोलॉजी जो ग्रास रूट लेवल पर अपनाया गया हो, सक्सेसफुल रहा हो, उस पर चर्चा हुई है। एक सवाल यह है कि हम पानी की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, ऊर्जा की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर क्लाइमेट चेंज के नकारात्मक परिणामों से सारे देश विश्व को बचाना है तो रिसोर्स यूज़ की एफिशिएंसी को बढ़ानी पड़ेगी, पानी के यूज़ की एफिशिएंसी को बढ़ानी पड़ेगी। देयर इज अ ग्लोबल movement to say that it's not only the energy efficiency that has to be increased, but equity aspect, whether energy efficiency is helping the poor and the vulnerable. मुझे बहुत अच्छा लगा इसको explicitly न बात करते हुए भी
The concern for efficiency of water use has been linked with the distributional equity. Whether जो गरीब एरियाज हैं, जो ऐसे क्षेत्र हैं जिले में जहाँ मार्जिनलाइज पॉपुलेशन रहते हैं, वल्नरेबल पॉपुलेशन रहते हैं, वहाँ तक पानी पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, इस पर एम्फेसिस है. सिर्फ एफिशिएंसी इज नॉट इनफ. आपको डिस्ट्रीब्यूशनल इक्विटी, मतलब सबको, गरीब तबके को स्पेशली मिल रहा है नहीं, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए. मुझे खुशी है कि डिस्कशन ऑन टेक्नोलॉजी इन द फोरम हैज़ बीन रियली नॉट फोकस्ड ऑन ओनली एफिशिएंसी, बट जो ग्रास रूट से निकल के आ रही है, जिसमें कंसर्न फॉर पुअर एंड वल्नरेबल इज ऑल्सो देयर. द थर्ड स्टेक होल्डर्स जो हमें बताया गया है प्रोग्राम के तहत, जिसको हमें इंक्लूड करना है, वो है रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स. मुझे जल जगह मिशन की ये बात बहुत अच्छी लगी. ये कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय एंड अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्टीज शुड बी ब्रॉट टू द डोर स्टेप ऑफ द पीपल ऑफ द विलेज. इट इज नॉट ओनली जल जगह के सेमिनार की बात नहीं कर रहा हूँ. कोशिश ये की जा रही है, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो गांव में काम कर रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उसको हम एकेडमिक्स लोगों के सामने इमीडिएटली रख सकें, उनका सोल्यूशन निकाल सकें. जो प्रॉब्लम बस्तर में है, कांकेर में है, वो उस समस्या का समाधान सिर्फ यहीं से ना निकले, इंटरनेशनल अगर हो सकता है, जो मैसूर में हुआ है, जो छत्तीसगढ़ में दूसरे जगह पे हुआ, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं. इसीलिए मुझे अच्छा लगा जब मुझे मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के सेक्रेटरी ने बुलाया, कहा कि आपको चेयरमैनी करनी है हमारे इस स्वच्छ भारत मिशन, SBM का जो डेटा जनरेशन सिस्टम था. तो मैंने कहा कि आपने एक गैर सरकारी इंसान को क्यों ले लिया, जो अक्सर कभी कभी क्रिटिकल भी लिखते हैं लेकिन जनरली सपोर्टिव है. लेकिन आपको पता है कि थोड़ी बहुत मेरी डिसएग्रीमेंट रहती है. उन्होंने कहा हमें ऐसे ही लोग चाहिए, क्योंकि हमें सच्चाई जाननी है. हमें वो नहीं चाहिए जो आके हमें कहे बहुत अच्छा काम हो रहा है. ये तो बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे. मुझे अच्छा लगा जल जगार मिशन में लोगों को बुलाया गया है, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपर्टीज. मैं 4 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार को भी शहरीकरण के बारे में आई वाज एडवाइजर, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी. तो लोग हैरान थे कि आप दो सरकार का अलग अलग राजनीतिक दल हैं, आप कैसे दोनों को एडवाइज कर रहे हैं. मैंने कहा देखिए, कंसर्न मुझे दोनों सरकार की एक ही लगता है. जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, दे शुड रीच द पुअरेस्ट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन. विकास पर चर्चा होनी चाहिए, राजनीति पर नहीं. मुझे अच्छा लगा कि ये जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है जल जगार में, इसमें आइडियोलॉजी को कटिंग अक्रॉस दैट, यू आर ट्राइंग टू बेस्ट ऑफ द अवेलेबल माइंड, क्वालिटी ऑफ माइंड, टू लुक एट द इश्यूज. द फाइनल स्टेक होल्डर्स हैं, वो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. प्रोग्राम में मेंशन किया गया है. मैं चाहता हूं कि जब हम इंटरनेशनल और नेशनल एक्सपर्टीज को डिस्कस करें, इन चारों स्टेक होल्डर्स को हम कैसे एक फ्रेमवर्क में बांधेंगे, तो हम इन चीज़ों को ध्यान में रखें. एंड वी थॉट दैट सिंस आवर इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स विल हैव टू ट्रैवल, विल फर्स्ट लिसन टू देम, गिव देम ब्रीफ 3 to 4 minutes. What are the key things that you think can work in the context of this situation? I know आपकी expertise, exposure to the region is limited, but still आपके ख्याल से क्या चीज़ लगता है इतने सुनने के बाद में कि कौन सी चीज़ है आप समझते हैं, which thing can work? तो आपके लिए क्या सुझाव रहेगा, हम सुनेंगे. लेकिन ऑफिशियल्स के बारे में एक ही सवाल मैं अभिषेक जी से और दोनों हमारे जो कोलीग हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये प्रश्न छोड़ रहा हूँ. मैं पिछले 2 महीने से छत्तीसगढ़ में, जैसे मैंने बताया पैदाइश मेरी छत्तीसगढ़ में ही है, और 5 साल वर्ल्ड बैंक में रह के या UN में रह के कोई आदमी विदेशी नहीं हो जाता. 50 साल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद में भी मैं एक मध्य प्रदेशी और छत्तीसगढ़ी हूँ. तो 2 महीने से मैंने ये चीज़ देखा है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस पर कुछ तवज्जो दें. मैंने देखा कि अलग अलग मिशन हैं. एक मिशन मुख्यमंत्री का मिशन है
मैंने देखा कि अजयगढ़ ब्लॉक में 70 गांव को चुना, उसमें से सिर्फ 40 गांव में काम शुरू हो पाया। 70 गांव चुना, ये देखे बरे कि पानी है ही नहीं वहां पर, इसीलिए आप कोई डैम बना ही नहीं सकते। तो जब बन रहा था तब कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। 40 गांव को चुना गया और 1.5 साल के अंदर 22 उसमें से बंद हो गए, 18 काम कर रहे हैं। भाई कैसे क्यों बंद हो गए? अगर आपने सर्वे करके शुरू किया था, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में बातचीत होनी चाहिए। अब जो है जल जीवन मिशन के बारे में मैंने देखा, बहुत सारे गांव में पाइपलाइन बिछ चुके हैं, लेकिन डैम का पानी नहीं आया, जनरेटर नहीं आया, नो पंप सेट नहीं आए और पाइप पड़े हुए हैं। अब होता यह है कि ट्रक जा रहा है, बस जा रहा है, पाइपलाइन टूट जाते हैं, कभी पाइप बिछाने के लिए सड़क को खोदना पड़ता है। मैंने जब सरपंच से बात किया, उन्होंने कहा the सरपंच told the drinking water supply mission, जल जीवन मिशन के लोगों को, you cannot dig this road, जब तक आप उसको भरेंगे नहीं। एक बार रास्ता खोद देते हैं पाइपलाइन बनाने के लिए and then you don't fill it up, तो बसें नहीं जा सकती। even our ambulances can't go and one lady died because the ambulance could not go, क्योंकि सड़क खोदा हुआ है पाइपलाइन के लिए। lack of coordination, and there are number of villages where pipelines have been laid down but the water has not reached। जब तक पानी पहुंचेगा आप देखेंगे 20-30% गांव में पाइप टूट चुके हैं। मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज सरकार की तरफ से इतनी कोशिश की जा रही है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, कटिंग अक्रॉस पॉलिटिक्स, a massive effort is being made to carry water to the doorsteps, लेकिन उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जिसने सैंक्शन किया है पाइपलाइन बिछाने का, वो कॉन्ट्रैक्टर चाहता है मेरा को, अगर कॉन्ट्रैक्ट अगला सरकार ने नहीं दिया तो क्या होगा, मुझे अभी से दे दो। देने वाले डिपार्टमेंट में सोचता है कि मैं ही दे देता हूँ। लोग कहते हैं कि कमीशंस हैं, अगर कमीशन है तो मुझे ही मिलना चाहिए, दूसरे आदमी क्यों दे? तो दे दिया उन्होंने सैंक्शन पाइपलाइन बिछाने का। पानी कब आएगा पता नहीं है। मुझे लगता है ये कोऑर्डिनेशन का एक बहुत बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जिसके बारे में मैंने थोड़ा अध्ययन किया। इसको मुझे लगता है ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये 4 मेरे मुद्दे हैं दिमाग में जो मैं आपके सामने रखा, और मैं चाहता हूँ कि हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कोलीग जो उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो उसको उस पर अगर कुछ फीडबैक दे सकें, और एक डिक्लेरेशन शायद बन रहा है, उसके भी कुछ इश्यूज पर अगर आप चर्चा कर सकें।